Good morning, students. As decided today and from today, 3 days, we are meeting for the most awaited workshop of the year. So I welcome you all on behalf of Real Academy for this 3 day workshop in which we will be seeing graphology. We will be learning graphology. We will learn some memory techniques on the second day, and we will also learn how to face this turbulent time which we are facing right now due to the pandemic. So, in our first day, that is today, we are going to start with the session of graphology. And to start with the session, I welcome our keynote speaker for the day, Mr. Prajesh Trotsky sir. I'll just inform a little about him. First of all, Prajesh sir is a family member of Real Academy, and he is associated with Real Academy for last 3-4 years. He is a motivational speaker, business coach. He has arranged 1,000 plus sessions on various topics wherein he discuss, he motivate the students, the parents, the teachers, the businessmen. He is a certified graphologist and a signature specialist. So in today's session, we will be learning graphology, in which we will learn some skills to improvise our handwriting, as well as we will also learn that based on our handwriting, how can we improve our future, how can we grow in our future. He's also into coaching industry for last 30 years. He is currently vice president of Maharashtra Class Owners Association, and also the part of many social and educational innovatives. So here I welcome Prajesh sir. Prajesh sir, very good morning and welcome to the workshop. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so So much. I hereby hand over the session to Prajesh sir. Before that, I'll just give the instruction to all the students. First of all, as it is yesterday told, you will be ready with plain papers and pens for writing purpose. And also in between, when the Prajesh sir will ask some questions, and when you have some doubts to ask with, when you want to interact with Prajesh sir, you just raise your hand. You will be unmuted from our end. You are all muted from our end. You cannot speak up. So when you have some doubts, you can raise your hands and you will be unmuted from our end, and then you can speak. But before that, it is compulsory that your video must be on. If your video is not on, your hand raises are not considered. You will not be unmuted. So please see to it that whenever you want to interact with Prajesh sir, you can raise your hand and you can ask your doubts. But for that, your videos must be on. So I hope you all will enjoy the session, and I hand over it to Prajesh sir. Prajesh sir. Thank you so much. Good morning, all the students. Welcome to this wonderful morning out here. And definitely, this is going to be a very out of the box session, as sir rightly said. कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है अगर आप लोग ने आज से 3 दिन तक ये टॉपिक्स को बहुत ही सीरियसली लिया. इसके लिए टॉपिक का नाम मैंने रखा है होलिस्टिक ग्रोथ थ्रू ग्राफोलॉजी. होलिस्टिक ग्रोथ यानी कि आपका पूरा ऑलराउंड ग्रोथ होगा if you do this 3 days session. Today graphology, tomorrow memory techniques, and day after tomorrow once again we'll be speaking on how to come out of few things of graphology. Also we'll be speaking and how to come out of these turbulent times. So hope all are ready with this paper to write and pen and everything. Hope everyone is ready. Is the chat box disabled for them? They can they talk to me through the chat box? They can share their feedbacks. Is it possible, sir? Is it possible Yes, on their sir. side? Yes, yes. So, friends, you are going to chat, means whatever questions I'll be asking, you can type in the chat box so that I can come to know whatever it is. So, let us type ready in our chat box. How many of you are ready to learn this science and implement it from today? How many of you are ready? Type in the chat box. Type in the chat box. Ready, ready, ready. I am ready. I am ready. He's ready. Everyone is ready. Just get those energies back. How many of you are ready? Type in the chat box so that I can see. Yeah, yeah, yeah. Everyone is ready. Great. Superb. Superb. So I can see many students are typing ready, sir, ready, sir, ready, sir. Wonderful. Wonderful. Excellent.
So we can see here many students are ready with all the notes and everything. So let us start implementing this everything. Here. Okay. So my friends, पूरा ध्यान, every single minute is going to be very precious. So totally focusing on the screen. हर एक चीज ध्यान से सुनेंगे. I'll be speaking in English as well as in Hindi. So making you to understand all the possible aspects. Now graphology. So what is the meaning of word graphology? So when we talk about logy, you might have heard about the word biology. सुना है ना सब लोगों ने? Biology करके एक word सुना है. Okay. So logy, biology में logy means study and bio means life. The study of life is called as biology. Logy means study and bio means life. Study of life is called as biology. Same way here, it is called as graphology. So logy means study and study of graph. Study of graph. You will say, sir, mathematics में graph होता है. हमारे पास थोड़ी graph होता है. Mathematics has a lot of graph work and all. Science में थोड़ा बहुत graph होता है. So why, how come graphology? So logy means study and the study of the graph of your life. So what is the graph of your life? Your handwriting and signature is the graph of your life. आप जिस तरीके से लिखते हैं, जिस तरीके से साइन करते हैं, जिस तरीके से आपका handwriting जाता है, so that is the graph of your life. The way you write is the way you think. This is the science. Many years back, the science was invented, discovered, we can say, by various scientists who came forward and did research कि कैसा handwriting से आपकी personality पता चल सकती है. I'll just brief you. I'll give you an example. Few years back, one child was in 10th standard. एक बच्चा 10वीं में था. A girl, she was in 10th standard. She had a very special challenge. क्या challenge था मालूम? जिस दिन exam रहेगा तो she used to fall sick. On the day of the exam, she used to fall sick. यानी कि जिस दिन exam उस दिन बुखार आए. Then she has to take injection and go for medication, and then she used to go for the exams. यानी कि हमेशा exam के दिन बुखार आने. This was happening from last 3-4 years. Doctor से इलाज करा दिया, सब चीज हो गया. Then somehow she came to me for counseling, and look at her signature. This was her signature. उसका नाम था वैशाली S नायक. So she used to write V.S. नायक. प्रॉब्लम नहीं है, सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. But my friends, can you see a line which is going up? है ना? Underline जो किया गया है, which is going up, taking a U-turn, coming down. देखो ये इसके signature के नीचे, you can see some lines. This is the graph, my friends. The line is going up, taking a U-turn, coming down, and again sinking down. Again sinking down. यानी कि ऊपर जा रहा है, U-turn ले रहा है, फिर वापस से नीचे आ रहा है, and then again going down, again going down. So this is the graph. भी समझ में? This is the graph of the life. यानी कि इस लड़की का ग्राफ जिंदगी का ये है. Going up यानी कि एग्जाम के पहले बहुत अच्छी तरह से तैयारी करती है. On the day of the exam कुछ तो उसके साथ होता है. And then she takes a U-turn. उसका माइंड एकदम हारने के तरफ हो जाता है और उसका बॉडी सरेंडर कर देता है. And then उसको बुखार आता है. And again sinking feeling. And then she has to take medicine. And this was happening from last 3-4 years. So overall किधर है देखो. Even though the line has gone up, where is the finally line coming? Overall, where is the signature going? Type in the chat box. Overall signature किधर जा रहा है? भले वो ऊपर जाके U-turn लेके नीचे आ रहा है, but where is the finally the signature going? Where is the graph going? Finally, where is the graph going? Type in the chat box. Where is the graph going? Where is the graph going? Overall, where is the graph going? Type in the chat box. भले if it is going up, taking a U-turn, coming down and sinking down, भले वो ऊपर जा रहा है, but overall graph किस तरफ जा रहा है? Type in the chat box. Overall, how is the graph going? My friends, the graph is overall going down. So she goes down. So this is her graph of her life. So ये सबसे बड़ा challenge हो रहा था उसके life में. This was happening every single exam. This is what is called as graphology. यानी कि आप कुछ भी लिखो, जैसा भी लिखो, कैसा भी signature करो, that shows the graph of your life. And I am an handwriting expert. We help
police, we help advocates, we help many people, we help people into recruitments. हैंडराइटिंग देखकर, सिग्नेचर देख के लोगों की पर्सनालिटी बता देते हैं कि इसके लाइफ में क्या होगा, ये क्या कर सकता है, ये क्यों हारेगा या क्यों जीतेगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, सब चीज हैंडराइटिंग से पता चलता है. इट्स अ बिग साइंस. So what I did, my friends, I just helped her in doing one thing. कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको कहा just write VS Nayak and put an underscore going up. इतना सा प्रैक्टिस करा है. सेम सिग्नेचर फॉलो करने कहा, VS Nayak, put an underscore going up. That's it. Underscore going up. तो उसका लाइफ किधर जाएगा? Now where the life will go, type in the chat box. Where the life will go. Now VS Nayak लिखने के बाद अंडरस्कोर ऊपर गया. Now where the life will go, where the life will go, where the life will go. Very good. The life will go up. The life will go up. समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है. तो कुछ भी सिग्नेचर, कुछ भी लिखते टाइम हमको हमारा हैंडराइटिंग परफेक्टली मालूम पड़ना चाहिए. फॉर द फर्स्ट टाइम यू पीपल माइट बी नोइंग दिस थिंग. It's a big science. It's a big science. From last 11 long years, I'm working and I've helped so many students and so many people around, and their life has transformed. As I mentioned today, कि आज अगर आप लोगों ने ये बात मेरी ध्यान से सुनी और ये सब चीज आपने आपके हैंडराइटिंग में, सिग्नेचर में बदलाव लेकर आया, गारंटीड है कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. So you should be lucky that Real Academy has kept this session for you all. ये बहुत ही, जब मैं 1-to-1 लेता तो I charge 15 to 20,000 rupees just from a single person to make them to understand कि how to change their handwriting. एक बंदे से 15 से 20,000 रुपया लेता है. That is the cost of mine when I come and talk. But since I am associated with Real Academy since last 3 to 4 years, I am a part of Real Academy, so it is my privilege कि मैं आप सब लोगों को knowledge दे पा रहा हूँ. इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना. Say thank you later on from after this 3-day session. You should say personally thank you to Real Academy, the entire people, the entire team for supporting you to get such a wonderful knowledge which no one might be giving, my friends. No one might be giving. So this is what is graphology. आपका signature कैसा होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, but not today. सिग्नेचर के बारे में हल्के से डिस्कस करेंगे वेडनेसडे के दिन. आज सिर्फ हैंडराइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. सो माय फ्रेंड्स, यस, व्हाई ग्राफोलॉजी माय फ्रेंड्स? ग्राफोलॉजी, एज योर फिंगरप्रिंट इज यूनिक, जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक है वैसा ही हमारा हैंडराइटिंग यूनिक है. यानी कि आपके जैसा दूसरा कोई भी लिख नहीं सकता. थैंक यू एवरीवन. एवरीवन इज सेइंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन फॉर राइटिंग थैंक यू. Superb. Thank you everyone. Thank you so much for saying thank you to the entire Real Academy for supporting you for such a wonderful course. So my friends, like fingerprint, जैसे कि आपका समझो 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे है, तो 700 करोड़ अलग अलग फिंगरप्रिंट है, तो सेम वे 700 करोड़ अलग अलग हैंडराइटिंग रहेगा. एवरी हैंडराइटिंग इज यूनिक. हम सब लोगों ने एक चीज देखा रहेगा, कभी कभी बचपन में ना, वी माइट हैव फॉरगॉटन टू रिटन द नेम ऑन द नोटबुक. बचपन में हम लोग नाम लिखना भूल जाते हैं नोटबुक के ऊपर, और नाम भूलने के बाद फिर बाद में टीचर करेक्शन करने के बाद टीचर जब बुक रिटर्न करती थी, सो देयर वाज नो नेम रिटन ऑन द बुक. तो टीचर के पास नाम नहीं है बताने के लिए, तो शी यूज्ड टू ओपन द बुक एंड शी यूज्ड टू शो यू ना, ऐसे ही दिखा देते, हु इज दिस पर्सन हु हैज नॉट रिटन द नेम, ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है. तो शी यूज्ड टू शो यू व्हाट, शी यूज्ड टू शो योर हैंडराइटिंग. वो टीचर आपको आपका हैंडराइटिंग दिखाती थी और पूछती थी कि बताओ ये किसका है, ये किसका है, किसका है. हम सब ने किया रहेगा, जब हम लोग नाम भूल जाते थे लिखने के लिए, लेबल फट गया, नाम लिखा नहीं, टीचर ने करेक्शन के लिए ले लिया. दिस माइट हैव हैपेंड मेनी अ टाइम्स विद ऑल ऑफ यू. यस और यस, सबके साथ ये हुआ रहेगा कि जब नाम लिखने को भूल गए तो आपका नाम लिखा नहीं है, टीचर फिर बुक खोलकर बताती है, हु इज दिस बोन. हम लोग के स्कूल में तो बोलते थे, हु इज दिस शेमलेस बोन हु हैज नॉट रिटन द नेम. तो हम लोग बोलते थे, यस सर, इट इज मी, बिकॉज दैट हैंडराइटिंग बिलोंग्स टू मी. यानी कि आपका हैंडराइटिंग यूनिक है, आपके जैसा दूसरा कोई भी लिख नहीं सकता. No one else can write like you. That means it is unique. So your personality is unique. Yes, ऐसा हुआ रहेगा हम सब लोगों के साथ. So my friends, handwriting is the X-ray of your mind. Handwriting है, ये X-ray है आपके माइंड का. भी सर X-ray of the mind, ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ. आपको ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपने सुना रहेगा जब किसी को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोग सीटी स्कैन निकालते हैं.
हार्ट में प्रॉब्लम है तो एक्सरे निकालते हैं, पेट में प्रॉब्लम है सोनोग्राफी निकालते हैं। लेकिन मन में अगर प्रॉब्लम है, मन में अगर प्रॉब्लम है, सर मेरे मन में प्रॉब्लम है, मुझे ना पढ़ाई करने नहीं हो पाता है, ये तो मन है। अब मन कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन नहीं है, देयर इज नो ऑर्गन कॉल्ड एज माइंड। कभी पूछ लेना किसी को मन किधर है, मेरा मन नहीं लग रहा, अभी किधर है ये मन, ये बता नहीं सकते बिकॉज ये ऑर्गन नहीं है। तो मन क्या है? मन एक विचारों की पूंजी है। इट इज एन थॉट, बैग ऑफ थॉट्स। इट्स अ कंसेप्चुअल बैग, एन इमेजिनरी बैग ऑफ थॉट्स, विचार। ये विचार हमको -9 मंथ्स यानी कि माँ के कोख से लेके 14 साल के बीच में आपको ये विचार मिलते हैं। माँ बाप के जरिए, टीचर्स के जरिए, स्कूल के जरिए, समाज के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ऐसे कितने सारे विचार हमको मिलते हैं। सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मालूम नहीं क्या मिल रहा है, बट वी टेक ऑल दिस थॉट्स एंड वी बिकम अ ह्यूमन बीइंग, और फिर उस हिसाब से जिंदगी को जीते हैं। अभी रियल एकेडमी के सभी प्रोफेसर्स लोग, सभी लोग अच्छी तरह से सिखाते हैं, सब चीज दिखाते हैं, सब चीज पढ़ाते हैं, लेकिन हम सब लोग क्या सेम मार्क्स लाते हैं? नहीं लाते। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि हमारा सोचने का तरीका, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी ताकत सबकी अलग होती है। क्योंकि हमारे अंदर जो विचार पड़े हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हमको नहीं मालूम। हर एक बच्चा के पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 80 बिलियन, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 52 GB। इतना कैपेसिटी हम सबके अंदर है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे मन में निगेटिव विचार बहुत होते हैं। मैं ये नहीं, मला मॅथ्स येत नाही, मला सायन्स येत नाही, मला मराठी जमत नाही, ये सब विचार है। राइट टू अंडरस्टैंड। ये हमको माँ के कोख से लेके -9 मंथ्स टू 14 ईयर्स के दरमियान कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, बारिश में भीगोगे सर्दी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, में हमेशा बारिश से बचते फिरता रहता था। आई नेवर यूज्ड टू गेट वेट इन, लेकिन मेरे सब दोस्त लोग बारिश में भीगते थे। पहली बारिश आए, सब झूम के नाचते थे, और मैं भागता था बारिश से, बिकॉज सर्दी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा। फिर अच्छा हो गया, कई सालों के बाद, आप लोग तभी शायद ही जन्म लिए रहेंगे, कई सालों के बाद 26 जुलाई हो, एंटायर मुंबई वाज ड्राउन्ड, पूरी बंबई डूब गई थी। और मेरे घर में भी बहुत हाइट तक पानी था। 2 दिन तक मैं पूरा बारिश में भीग ही रहा था। ना सर्दी आई, ना बुखार आया, ना कुछ भी नहीं आया। क्यों क्यों नहीं आया? कि उस वक्त में मम्मी ने जो विचार दिए थे कि बारिश में भीगोगी कि सर्दी होगी, बुखार आएगा, ऐसा पाएगा, वो विचार नहीं आया। उस टाइम पे जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वही विचार रहा, तो पुराना कोई भी विचार नहीं आया, और फिर काम हो गया। बारिश में भीगा, बुखार नहीं आया। उसके बाद कभी बारिश में भीगता नहीं हूँ, लेकिन अगर भीग भी गया तो बुखार नहीं आता, बिकॉज विचार को निकाल दिए। अभी कोई तो आप मैथमेटिक्स का एग्जाम लिख रहे हो, आपके अंदर विचार आ जाता है, अरे बाप रे मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं भूल जाता हूँ, मेरे फॉर्मूला याद नहीं होता, ये विचार आ जाता है और आप भूल जाते हो, और फिर वापस से आपकी हालत खराब हो जाती है। आर यू विद मी? समझ में आ रहा है? सब विचार पड़े हुए हमारे अंदर। क्या हम इस विचारों को बदल सकते हैं? यस। क्या ये विचारों को देख सकते हैं? यस। किससे? आपकी हैंडराइटिंग से। इट इज अ फेथफुल एको ऑफ योर रियल पर्सनैलिटी। इट इज द एक्सरे ऑफ योर माइंड। मैथमेटिक्स आता है मेरे दोस्तों आप लोगों को? रोड क्रॉस करते टाइम कोई टीचर ने फॉर्मूला सिखाया था क्या? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिखाने के बाद अब रोड क्रॉस करना सीखे। टीचर ने फॉर्मूला सिखाने के बाद रोड क्रॉस करना सीखे आप लोग। नोटबुक लेके मेन रोड पे खड़े रहते हो, वो ड्राइवर को पूछते हो क्या स्पीड है, वहां से व्हाट्सएप करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। फिर टेप लेके रोड को नापते हैं, 10 मीटर का रोड है, फिर सीट मीटर को सेकंड में कन्वर्ट करते हो, किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर कर, नहीं सॉरी 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 मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा किया है क्या आज तक आपने? नोटबुक लेके मेन रोड पे खड़े रहते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। अरे आप दूर खड़े रह के गाड़ी के स्पीड को जज करते हो, डिस्टेंस को जज, अंदाजा देखो कितना पावरफुल आपका। स्पीड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, टाइम कम है, मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता रोड क्रॉस, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स आप, लेकिन डरते हो। कहीं ना कहीं तो डर पड़ा हुआ आपके अंदर। ये डर कहां से पकड़ेगा? ये ग्राफोलॉजी पकड़ेगा आपका। आपका हैंडराइटिंग बताएगा क्या गड़बड़ है, कहां विचार है, किधर जा रहा है। क्या हम बदल सकते? यस। आज 5 से 6 चीजें बताऊंगा मैं आपको बदलने की आपके हैंडराइटिंग।
कितने सारे जन सीरियसली बदलेंगे? बताइए मुझे, हाउ मेनी विल बी सीरियसली चेंजिंग दोस थिंग्स व्हिच आर डेंजरस इन आवर हैंडराइटिंग्स व्हिच आर गोइंग अगेंस्ट आवर पर्सनालिटी? कितने सारे जन तैयार है? मी सुपर। 509 लोग हैं यहाँ पर। सुपर, ग्रेट, एक्सेलेंट। चलो एक एक करके सीखते हैं, सब लोग सीखते हैं। एक छोटा सा एक्टिविटी, सब लोग, एवरीवन, what you are going to do right now is you are going to write 8 to 10 line about yourself. Superb, everyone is ready. Me. Very good, excellent crowd. I have one of the finest crowd whom I am taking this session. बहुत मजा आ रहा है सर, मंडे सुबह को इतने सारे बच्चे आ रहे हैं। आई विल, सुपर। चलो क्या करना है, सब लोग 8 से 10 लाइन लिखेंगे खुद के बारे में। क्या लिखेंगे? एवरी, सब लोग ध्यान से सुने, फर्स्ट लिसन टू द इंस्ट्रक्शन एंड देन राइट। पूरी तरह से जब मैं बोलूंगा तब लिखने का। हमारा गड़बड़ क्या है मालूम है? टीचर बोलती है बेटा बोर्ड पे देख, तो बच्चा बुक में देखता रहता है। टीचर बोलती है बेटा अभी लिखो, तो बच्चा बोर्ड पे देखता है। ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। टीचर जब बोलती है बोर्ड पे देख, तो बोर्ड पे देखने का। टीचर बोलती है जब लिख, तब लिखने का। गड़बड़ नहीं करने का। ध्यान से सुनने का। एवरी लाइन शुड स्टार्ट विद आई। 8 से 10 लाइन आपको आपके बारे में लिखना है। एवरी लाइन शुड स्टार्ट विद आई, और उसमें क्या रहना चाहिए? आई लाइक, व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। जैसे कि मैं लिखूंगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स। जो भी आपको ठीक लगे आपके बारे में, पड़ोसी के बारे में नहीं, अपने दोस्त के बारे में नहीं, खुद के बारे में लिखना है। 8 to 10 लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। सब लोग लिखेंगे, और जैसा लिख के हो जाएगा डन 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 करके टाइप कर देना चैट बॉक्स में। 8 से 10 लाइन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सर मुझे ना पूरा का पूरा लाइक्स लिखना है, लिखो। सर मुझे पूरा का पूरा डिसलाइक्स लिखना है, लिखो। सर मुझे आधा लाइक्स आधा डिसलाइक, लिखो। जो समझ में आता है लिखो, लेकिन लिखो। जैसा लिख के हो जाएगा टाइप करना डन, ताकि हम सब आपके हैंडराइटिंग के अंदर देखेंगे क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। चलो कम ऑन, स्टार्ट। Start writing, and once you have finished, type done. I'll give you 2 to 3 minutes. खुद के बारे में 8 से 10 लाइन लिखना है। कभी कभी तकलीफ हो जाएगी लिखने के लिए, कि खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, दुनिया के बारे में सोचा है सबसे ज्यादा। Those who are finished can done in the chat box. Very good, superb, excellent. Great. Done. People are getting finished. Last 1 more minute. Take your time. 1 more minute is there. Those are finished can type done in the chat box. So why I'm telling you to type and all these things is that makes me to understand कि आप कहाँ पे खड़े हो, कैसा चल रहा है, how is the energy. That is how we can interact with each other. ये offline ऑनलाइन में यही होता है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन लगता है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी एकदम ध्यान से सब चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। ग्रेट, सुपर। Last 30 seconds. Then when I'll still stop writing, then you should stop writing. Okay. चलो जितना भी हो गया, great. चलो last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1 स्टॉप राइटिंग नाउ, स्टॉप राइटिंग, बंद कर दो, जितना भी हुआ 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन जितना भी होगा दैट मस्ट इज एनफ. नाउ एवरीवन विल लुक ऑन टू द स्क्रीन. सब लोग स्क्रीन पे, जब बोलूंगा स्क्रीन तो स्क्रीन, जब बोलूंगा लिखना तब लिखना, ध्यान देने का एकदम अच्छी तरह से, सब लोग ध्यान से. एवरीवन ऑन टू द स्क्रीन. मैं 6 टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर, एंड इफ ये 6 पैरामीटर आपके हैंडराइटिंग में है करेक्ट वंस तो बहुत अच्छी बात, और स्ट्रॉन्ग करो. जिसे नहीं है तो उसको आज से बदलेंगे. कैसा प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, कैसा करना है, सब मैं बताऊंगा, एक एक करके एकदम ध्यान से सुनो. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं चर्चा करने वाला हूं दैट इज INJ. वेरी, सब बच्चों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है. INJ, whenever we write small INJ we are supposed to put dots. हम लोग जो है I और J के ऊपर डॉट्स डालना रहता है, सबको डालना पड़ता है. नाउ सब लोग ध्यान से सुनना. जो भी बच्चे those who are able to put the dots exactly above INJ, एकदम I और J के ऊपर गिरना चाहिए. Exactly above INJ, एकदम ऊपर, इधर नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, एकदम ऊपर नहीं, नीचे नहीं. Everyone should be able to put your dots exactly above INJ. People, those who can put their dots exactly above INJ means they will have a very good focus and awareness. उनका फोकस और उनका अवेयरनेस बहुत पावरफुल रहेगा. उनका पढ़ाई में ध्यान से लेके हर काम में, अगर वो अलजेब्रा के लेक्चर के लिए बैठा है तो पूरा ध्यान अलजेब्रा के लेक्चर में रहेगा. जो भी काम करेगा उसमें ध्यान पूरा, दैट इज कॉल्ड एज फोकस एंड अवेयरनेस. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग रहेगा. जो भी जिनके आई और जे के डॉट्स बराबर आई और जे के ऊपर गिरते हैं. अर्जुन को हरे कलर के पेड़ के बीच में, हरे कलर के पत्तों के बीच में, हरे कलर के तोते का आंख दिखता था. अर्जुन को तो आंख दिखता था तोते का, हमको तो पूरा पेड़ दिखता है. तोता तो दूर की बात है. तो जिनको पेड़ दिखता है तोते दिखते नहीं है, इसका मतलब फोकस कंसंट्रेशन की कमी. People those who can put exactly dots above INJ can have a very good focus and concentration. तो आप लोग के मन में आता रहेगा कि सर क्या मैं प्रैक्टिस करूं क्या आज से? यस, कैसा करना चाहिए सब बताऊंगा, डोंट वरी. थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बता देता. कुछ बच्चे लोग, ताकि पेरेंट्स और जो भी टीचर्स यहाँ पर उनको भी समझे, बच्चे आप लोग को भी समझे. कुछ बच्चे लोग डॉट्स पीछे डालते हैं. Certain people will have their dots falling behind. ठीक है. Certain peoples will put their dots very high. एकदम ऊपर डालें, कहीं पे भी गिरे ऊपर. Certain people will put their dots very ahead. एकदम आगे डालें. And certain students will forget to put the dots. कुछ बच्चे डॉट्स डालना भी भूल जाते हैं. अच्छा, यहाँ पर कोई है जो सर्कल डालता है? Anyone type in the chat box. कोई है जो सर्कल डालता है, डॉट के जगह पे सर्कल डालता है? डोंट वरी, मैं सर्कल के बारे में बात करूं. एनीवन जो सर्कल डालता है? यस, कुछ लोग सर्कल डालते रहेंगे. जो डालते रहेंगे वो लोग मी करके लिखो. एनीवन? यस, देयर आर फ्यू पीपल. फ्यू क्या, बहुत सारे. स्पेशली गर्ल्स लोग के हैंडराइटिंग में सर्कल रहेगा. स्पेशली गर्ल्स लोग के हैंडराइटिंग में सर्कल रहेगा. तो सर्कल डालते हैं, बॉयज लोग भी डालते हैं, लेकिन स्पेशली गर्ल्स लोग डालते हैं. देखिए इधर पे स्नेहा करके आ रहा है, श्रेया कर. मैक्सिमम गर्ल्स विल पुट सर्कल्स. डोंट वरी, सर्कल या डॉट कुछ भी हो, इट शुड फॉल एग्जैक्टली अबव. सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सब लोग ध्यान से. समटाइम्स कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते. मिक्स है सर, मेरा मिक्स है. मैं कभी डॉट डालता हूँ, कभी सर्कल डालता हूँ. मैं मिक्स मौला हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. वॉट एवर मे बी, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अभी ध्यान से सुनेंगे. स्टॉप. अभी कोई लेफ्ट में डालता है, कोई एकदम ऊपर डालता है, कोई राइट में डालता है, कोई डालना ही भूल जाता है. थोड़ी चीजें समझना बहुत जरूरी. जो लेफ्ट में डालता है, पीपल दोज हु पुट द डॉट्स ऑन द लेफ्ट साइड, दे आर प्लेन प्रोकास्टिनेटर्स. लेफ्ट साइड, लेफ्ट होता है पास्ट. लेफ्ट के तरफ मतलब पास्ट, यानी कि चीजें पोस्टपोन्ड करने की आदत. चीजें पोस्टपोन्ड करने की आदत. लेफ्ट पीछे पड़ा रहना, यानी कि पीछे रहना. आज का काम कल, कल का काम परसों. इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है परसों. टीचर आज होमवर्क देगी, करेगा ही नहीं. कल करेगा, परसों करेगा, जब मन किया करेगा. पोस्टपोन्ड करने की आदत. जिसके डॉट्स
पीछे गिरते, यानी कि मैं दुनिया से पीछे हूं, मेरा ध्यान पीछे है, आगे नहीं है, एकदम माई फोकस इज बिहाइंड, यानी कि मैं पीछे हूं, पोस्टपोंडिंग मेंटालिटी। अच्छा, हम सब लोगों ने स्कूल में, अभी समझो, सब लोग ध्यान से सुनना, हम सब लोग ने किया रहे, जब भी स्कूल में टीचर ने या क्लासेस में टीचर ने होमवर्क दिया, people those who, if teachers give you the homework and if you have done the homework, सब लोग ध्यान से सुनो, if you have done the homework, next day when you go to the school, what you will ask the teacher, जिस दिन आपने होमवर्क किया है, जिस दिन आपने होमवर्क किया है, उस दिन आप टीचर को क्या बोलोगे? टीचर 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 चेक दी होमवर्क, यस और यस, है ना? टीचर, क्योंकि तुमने किया है, तुमने किया है, बिकॉज तुमने, यू विल फेस द, लेकिन जो लोग डॉट्स पीछे डालते हैं वो रियलिटी को फेस नहीं करते। जिनके डॉट पीछे गिरते हैं वो दोस्त को बोले, अरे क्यों बोला तूने टीचर को, मैंने होमवर्क नहीं किया ना, काहे के लिए मेरे को फंसा रहा है तू, ऐसा करे कोनी पीनी मारेगा, उसको डांटेगा, उसको बोले काहे के लिए, क्यों फंसाया मुझे? यस और यस, ऐसा करते हैं क्योंकि तुम रियलिटी को फेस नहीं करते। रियलिटी को तुम फोन नहीं उठाएंगे, जिसका काम तुमको दिया, तुम्हारे दोस्त ने तुमको फोन करके बोला मुझे ये काम चाहिए और तुमने उसका काम नहीं किया, तो तुम उसका फोन नहीं उठाओगे, अरे बाप रे उसने बोला था और मैंने नहीं किया, क्योंकि यू डोंट फेस द रियलिटी। तो पीछे डालना गलत बात है, एकदम आसमान में डालना, जो एकदम ऊपर डालते हैं अनरियलिस्टिक फोकस, यानी कि एक्चुअली ध्यान नहीं दे रहे। टीचर को ऐसा लगेगा बहुत ध्यान दे रहा है, ऐसा बेटा रहेगा एकदम स्क्रीन को देख के, टीचर को देख के, ऐसा टीचर को ऐसा लगेगा, अरे बाप रे तो बहुत ध्यान दे रहा, लेकिन दे ही नहीं रहा, अनरियलिस्टिक, हवा में। तीसरे जो लोग आगे डालते हैं वो अहेड ऑफ रियलिटी रहते हैं, अहेड ऑफ रियलिटी, यानी कि बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, इधर टीचर बोल रही हो उधर पहुंच गया है, टीचर इज हियर एंड द चाइल्ड इज देयर। हम लोग काफी टाइम एग्जाम में ऐसा कभी कभी करते हैं, मालूम, पेपर खत्म नहीं हो रहा था ना, फटाफट 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 लिखने की कोशिश करते तो डॉट ऑटोमेटिकली आगे गिरता है, सब कुछ आगे गिरता है, फटाफट फटाफट आगे गिरता है, सब कुछ एकदम फास्ट 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 फास्ट। जिसके डॉट्स आगे गिरते हैं वो बहुत फास्ट थिंक कर रहते हैं, उनका ना, मतलब ये आंसर लिखते टाइम, इधर पहला पॉइंट लिखते टाइम तीसरे पॉइंट के ऊपर ध्यान रहता है, पहला पॉइंट लिखते टाइम तीसरे पॉइंट, इसके लिए ध्यान नहीं जाता, मार्क्स रॉन्ग हो जाता, गड़बड़ हो जाते, सब चीज गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना? तीसरा, चौथा, सब लोग जो लोग डॉट्स नहीं डालते हैं, माय फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी में बहुत सारे बच्चे डॉट्स नहीं डाल रहे आज की तारीख में। There are many students those are not putting the dots. People those who don't put the dots, forget to put the dots, are absent-minded people. चीजें भूलने की आदत। स्कूल में टीचर पूछती है कंपास बॉक्स लाया है, बाजू वाले को पूछता है लाया, सब कुछ बाजू वाला। नोटबुक लाए हो, बाजू वाले को पूछे लाया, आधा देना, आधा आधा, 2 पेज फाड़ के देना उसमें, सब बाजू वाले को पूछेगा, क्या करेगा? कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स करूं, एब्सेंट माइंडेड, चीजें भूलने की आदत। आज कंपास बॉक्स भूल रहे हो, नोटबुक भूल रहे हो, कल क्या 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 भूलोगे? वॉलेट भूलोगे, मोबाइल फोन भूलोगे, फाइल भूल जाओगे, चीजें भूल जाओगे, एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को। तो डॉट्स नहीं डालना, पीछे डालना, आगे डालना, आसमान में डालना, ये सब गड़बड़ है। तो किधर डालना चाहिए? और सर्कल, अच्छा जो लोग सर्कल डालते हैं तो भी चलेगा। पीपल दोज हु पुट सर्कल्स आर नॉट बैड स्टूडेंट्स, दे आर अटेंशन सीकर्स। सर्कल डालने वाले बच्चे एक्टिविटीज में बहुत आगे रहेंगे, जो भी सर्कल डालते हैं उन लोग एक्टिविटीज में बहुत आगे रहेंगे, डांस, ड्रामा, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ऑरेटिंग, स्पीचिंग, जो कुछ भी, एक्टिंग हो, सब चीज हो, रंगोली बनाना हो, पेंटिंग करना हो, ये करना, सब में लोग आगे रहेंगे, दे आर मल्टी टैलेंटेड पीपल। तो सर मैं सर्कल डालू क्या डॉट डालू? दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन किधर गिरना चाहिए? वेयर इट शुड फॉल, वेयर इट शुड फॉल, इट शुड फॉल एग्जैक्टली अबाउ INJ माय फ्रेंड्स। तो ये आपका सबसे फर्स्ट एडवाइस, सर्कल डालो, डॉट डालो, इट शुड फॉल एग्जैक्टली अबाउ INJ। आज से प्रैक्टिस मैं बताऊंगा कैसा प्रैक्टिस करना है, क्या लिखना है, क्या करना है, ये सब चीजें सब मैं लिखूंगा, डोंट वरी अबाउट, सब बताऊंगा, एंड में सब चीज बताऊंगा, डोंट वरी। आपको आराम से सिर्फ समझो,
की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी मेरे दोस्तों। ये साइंस है ना, 50 घंटा लगता है मुझे सिखाने के लोगों को, मैं सब चीज नहीं बता पाऊंगा, करेक्ट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, द करेक्ट वंस, हाउ टू ब्रिंग चेंजेस। सो फ्रॉम टुडे आई विल गिव यू सम होमवर्क। 21 दिन ये लिखना है, फिर 21 दिन दूसरा कुछ चीज करना है, फिर 21 दिन और तीसरा चीज करना है। ऐसे हम लोग एक 90 डेज, नेक्स्ट 3 मंथ्स का आपको एक होमवर्क देंगे और करो। और जो भी बच्चे ने ये किया उसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा। जो 3-3 घंटे की पढ़ाई है वो 1-1 घंटे में हो जाएगी। आपका ध्यान, फोकस, माइंडसेट सब बदलेगा। आपको मालूम नहीं आपको क्या मिल रहा है, यू डोंट नो व्हाट यू। मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग को दे रहा हूँ सब चीज यहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग याद रखना है कि आई और जे पे डॉट्स होने चाहिए या सर्कल्स भी चलेंगे, दोनों मिक्स लिखते तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट इट शुड फॉल ऑन द आई एन जे। ठीक है ना? अभी ध्यान से सुन। अभी एक बंदा बोलता है कि सर्कल, अच्छा अच्छा अच्छा, सो सर मैं बड़े बड़े सर्कल डाल, बड़ा बड़ा सर्कल नहीं डालना, ऐसा बड़ा बड़ा सर्कल, ऐसा ना होता पटाटे के जैसा बड़ा बड़ा सर्कल, वड़ा वड़ा के जैसा बड़ा बड़ा सर्कल डालते, गलत। स्मॉल सर्कल्स आर ओके, डोंट पुट वेरी बिग सर्कल्स। एनीथिंग एक्स्ट्रा इज ऑपोजिट, कुछ भी जरूरत से ज्यादा रहेगा गड़बड़ रहेगा। कोई भी चीज जरूरत, याद रखना जिंदगी में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा रहेगा तो गड़बड़ रहता है। तो नॉर्मल सर्कल अगर आप डालोगे तो फर्स्ट एडवाइस समझ में है सबको, वंडरफुल। अभी सेकेंड एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 चीजें बताऊंगा और सब इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आई। ये कैपिटल आई जो होता है इसमें 3 हिस्से होते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं ऐसा आई नहीं लिखता हूं, मैं कर्सिव वाला आई लिखता हूं, आई राइट कर्सिव आई। डोंट वरी, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले सिर्फ समझो, अच्छी तरह से समझो। सबने लिखा है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक, आई सबने लिखा है, तो बहुत वेराइटीज ऑफ आई है। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वेराइटीज डिस्कस करूंगा और करेक्शन कौन सी करना है उसके ऊपर मैं बताऊंगा। तो आई जो होता है इसमें 3 हिस्से होते हैं, दिस कॉल्ड एज पर्सनल प्रोनाउन आई, यानी कि ये मैं हूं, दिस इज मी, ये मेरे बारे में बताया जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, आई के 3 हिस्से होते हैं। मिडिल वाला इज द स्टेम, इज यू, ये आप हो, बीच वाला हिस्सा आप हो, ऊपर वाला क्रॉस बार, the line which goes like this way is mother, नीचे वाला क्रॉस बार is connected to father, so the straight one is self, that is me, upper cross bar is mother and lower cross bar is father। यानी कि 3 हिस्से, फादर का फाउंडेशन और मदर का केयर, मदर ऊपर से कैरिंग, नीचे से फादर का फाउंडेशन। अरे सर इतना पावरफुल, यस, ये बहुत बड़ा साइंस है। शिवाजी महाराज भी इस साइंस को इस्तेमाल करते थे, हैंडराइटिंग के जरिए अपने लीडर्स लोग को सिलेक्ट करते थे, किसको कहां पर अपॉइंट करना है, शिवाजी महाराज भी करते थे। सोचो, बहुत बड़ा साइंस है, जाने दो, उसके बारे में मैं ज्यादा ये नहीं बताऊंगा यहाँ पर। सिर्फ समझो, आंख बंद करके विश्वास करो और कर दो, कर देना, चेंजेस ला देना, आज से चेंजेस लेकर आ जाना, ठीक है ना? सो हम, दिस आई कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। The central part is you, the self, the stem, upper crossbar mother, lower crossbar father. So this completes our I. So let us see few negative examples. Let us see this first sample. Let us see this first sample. What you can observe. First sample में अगर आप देखोगे कुछ तो आपको दिखेगा। आई एम मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ गड़बड़ हो जाता है और फिर कैसा परफेक्ट आई करना। डायरेक्ट होमवर्क देने में मजा नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी और फिर उसको लेकर आएंगे। द लाइन्स आर नॉट जॉइंट, वेरी गुड, कैन यू सी देयर इज अ गैप, क्या बात है, क्या बात है, क्या बच्चे लोग हैं। Lines are not connected, there is a gap, there is a gap, there is a gap. Superb, 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 superb. Absolutely perfect, my friends. Absolutely perfect. So crossbar not touching the stem. जो ऊपर का crossbar है और नीचे का crossbar है, वो stem को touch नहीं कर रहा है। Gap है, very good, gap है। There is a gap between the
अपर क्रॉस बार एंड लोअर क्रॉस, मतलब क्या बताओ, मुझे बताओ, सोचो ना, आप ही सोचो। अपर क्रॉस बार मदर, लोअर क्रॉस बार फादर, एंड देयर इज अ गैप, तो मतलब क्या होता रहेगा? देयर इज अ गैप, दे आर नॉट एग्रीइंग विथ यस, मतलब कहीं ना कहीं माँ बाप के साथ नो बॉन्डिंग विथ मदर एंड फादर। क्या बात है, देखो एक बच्चे ने लिख लिया, नो बॉन्डिंग विथ मदर एंड फादर, लो कनेक्शन विथ पेरेंट्स, एब्सोल्युटली इमोशनली डिटैच्ड विथ पेरेंट्स। काफी बच्चे अपने माँ बाप से उतना कनेक्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा। इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस माय फ्रेंड्स, हमारा स्कूल, हमारा क्लासेस का पैसा, हमारे कपड़े, हमारा खाने का, सब चीज का बंदोबस्त वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी तरीके से शायद लोग को उस तरीके से आपसे बात करने नहीं आता रहेगा, माइट बी, बट दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। यस और यस, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, आज ये क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो कुछ भी। सो कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, वो बॉन्डिंग क्यों टूटता है हम उसकी गहराई पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस शुड नॉट बी दैट। ओके, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट वन बाद में देखेंगे। इसको देखो, इसको देखो, व्हाट इज दिस वन, सेकंड वन, इसमें क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी हियर, व्हाट यू कैन सी हियर, कुछ भी करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, करते हैं, डांटते हैं, तो भी जो कुछ भी है, बिकॉज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन से लेके सब चीज उन्हीं की वजह से है, तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू यू। उसके बारे में सो वेडनेसडे को बात करें। सो मच बॉन्डिंग। यहाँ सेकंड वाले में क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, ओवर बॉन्डिंग। ये सुपर, वेरी मच का, अरे अरे तो बहुत जबरदस्त बच्चे, सबको ग्राफोलॉजी आता है। ओवर बॉन्डिंग, जरूरत से ज्यादा, क्रॉस, ओवर इमोशनल, एब्सोल्युटली, द क्रॉस बार, क्रॉस कटिंग द स्टेम, इमोशनली अटैच्ड विद बोथ द पेरेंट्स बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद बोथ द पेरेंट्स। ओवर बॉन्डिंग, जरूरत से ज्यादा प्यार, जरूरत से ज्यादा प्यार। मां बोलेगी एग्जैक्टली ऑपोजिट बच्चा करे, प्यार दोनों से, रोज लड़ेंगे, रोज झगड़ेंगे और रोज प्यार करें। ओवर कनेक्टेड, जरूरत से ज्यादा। ये कब होता है? जब हम हमारी सीमाएं लांघ देते हैं, व्हेन वी क्रॉस अवर लिमिट्स। माँ बाप ने जो मांगा दे दिया, हमने सब ले लिया, तो हमको उसकी वैल्यू नहीं है, इसके लिए हम कदर नहीं करते हैं। इसके लिए माँ बाप को किती वेळा सांगितलं, तुला टीव्ही बघायचा नाही, 10वी मध्ये आहेस ना तू, 12वी मध्ये आहेस ना तू, 8वी मध्ये आहेस ना तू, अभ्यास कर, काय करतोस करके ऐसा कान पर, फिर वहां पढ़ रहा हूं ना, अभी पढ़ूंगा ना, बस ओवर बॉन्डिंग। मतलब क्या होता है कि रेस्पेक्ट ही नहीं। नाउ माय सन, मैं अगर बोलूंगा टीवी बंद तो बंद, एक ही घंटा टीवी देख, वो डरता है, मोबाइल फोन अब डरता है, मतलब रेस्पेक्ट करता है। ही रेस्पेक्ट्स मी व्हेन आई से मोबाइल फोन 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, that means 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening, only 1 hour of TV. he respects me, he डरता नहीं, रेस्ट। लेकिन काफी देर मम्मी डैडी बोल रहे, सब बता रहे, समझा रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। माँ बाप बोलेंगे एग्जैक्टली ऑपोजिट करके दिखाएंगे। मम्मी बोली इधर आ, वो मैं उधर जाऊंगा, ये कर तो वो करेगा, फिर मम्मी चले जाएगी, वापस टीवी चालू करके बैठ जाएगा, मम्मी कहीं नीचे चले गए तो वापस मोबाइल फोन चालू करके बैठ जाएगा। बिकॉज ओवर कनेक्शन होने की वजह से वी डोंट रेस्पेक्ट ईच अदर एंड वी लॉस द वैल्यू, वी लूज द वैल्यू ऑफ द पर्सन। तीसरा भी डेंजरस है, थर्ड वाला भी अच्छा नहीं। अगर आपके हैंडराइटिंग में तो आज के आज बदलना पड़ेगा, ये नेगेटिव है, दिस इज अ नेगेटिव आई। ये कर्सिव आय है, ऊपर से मम्मी के साथ बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन डैडी के यहाँ पे नेगेटिव चीज है, क्लॉ इन द लोअर पार्ट, दैट द चीटिंग माइंडसेट। ऐसे आय अगर हम लोग लिखते हैं तो इट इज नॉट गुड, इट विल मेक क्रिएट अ माइंडसेट ऑफ चीटिंग। तो ये नेगेटिव आय है। अगर मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तीनों आय डेंजरस, दिस 3 आईज आर नॉट गुड। फर्स्ट वन तो बॉन्डिंग ही नहीं है, सेकेंड वन ओवर बॉन्डिंग है, थर्ड वन नेगेटिव है। ये तीनों चीज नहीं रहनी चाहिए हमारे हैंडराइटिंग में। बाकी छोटा मोटा तो व्हाट आर द करेक्टेड वंस, अभी ध्यान देना, कौन सी कैसा लिखना है, कौन सी कैसा लिखना, हाउ टू राइट। तो द करेक्टेड वन बेस्ट, देख लो फिर से कैसा लिखने का है।
पहला मिडिल स्टेम लिखने का, पहला मिडिल स्टेम, ऊपर क्रॉस बार, लोअर क्रॉस बार, परफेक्ट एकदम। मिडिल का स्टेम भी हो गया, अपर क्रॉस बार मदर, लोअर क्रॉस बार फादर, ये चलेगा। ओके। अभी कुछ बच्चे बोलते कि सर आई राइट कर्सिव आई, आई राइट कर्सिव आई, तो कर्सिव आई बेटा ऐसा लिख लो, ये चलेगा, ये ठीक है। नाउ हियर, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, थोड़ी कमी है। किस चीज की कमी रहेगी, ध्यान से सुनना। पीपल those who write like this way, those who write this type of I, this type of I, हाँ, ये इक्वल होना चाहिए, अपर क्रॉस बार लोअर क्रॉस बार इक्वल होना चाहिए। कम ज्यादा रहेगा तो मम्मी और डैडी के साथ उतना कनेक्टिविटी कम ज्यादा, इक्वल, ऊपर जितना उतना ही नीचे रहना चाहिए, इक्वल अपर एंड एज वेल एज लोअर। जो ये वाला लिखते हैं ये एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, कुछ कमी। कमी क्या है, यहाँ पे जो भी ऐसा लिखते हैं मदर एंड फादर दोनों है, लेकिन बॉन्डिंग विथ मदर इज मोर, bonding with mother is more. If you're writing this type of I, the second one, तो bonding with mother is more as compared to father. Negative नहीं है, लेकिन सर मेरा मम्मी के साथ ज्यादा जमता है, डैडी के साथ भी जमता है, but I am more connected to mother. So this is also done. It is not मम्मी का लाडला, माँ का लाडला बोल सकते हैं। वेरी गुड। और मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, उन लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, ऐसा अगर नहीं लिखना, कर्सिव में दूसरे तरीके से लिखना, तो ऐसा लिखो, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, यानी कि मदर एंड फादर दोनों के साथ इक्वल बॉन्डिंग। तो यू कैन राइट द फर्स्ट वन और द थर्ड वन, इफ नॉट देन सेकेंड वन इज ऑल्सो ओके। इट इज नॉट नेगेटिव, बट सेकेंड वन विल हैव लेसर इम्पैक्ट, बिकॉज फादर का बॉन्डिंग थोड़ा सा कम रहे, हम चाहते हैं कि इक्वल रहे। सो द फर्स्ट वन और द थर्ड वन, विच एवर इज कंफर्टेबल, इफ नॉट द सेकेंड वन। Are you with me? तो सेकंड करेक्शन बता दिया, दो चीज ये कब करना है, कैसे करना है, ये सब हम बाद में बताएंगे। हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, व्हेन टू डू इट, ये सब बाद में बताएंगे। पहले ये समझ में आए यहाँ तक? एंजॉयिंग एवरीवन, एंजॉयिंग एवरीवन, एवरीवन एंजॉयिंग? यस और यस। कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा सेशन होने वाला। सब लोग क्या कुछ तो बताएंगे हैंडराइटिंग के बारे में, इधर उधर सब। 100% you will be enjoying. Yes. नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इसके ऊपर ही काम करने का अपने को, जोन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, जोन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जोन्स, व्हाट आर जोन्स? हम सब लोगों ने, वी ऑल माइट हैव रिटन इन अ 4-line बुक। यस और यस, हम सब लोगों ने बचपन में स्कूल जाते वक्त 4-line बुक में लिखा रहेगा। रेड एंड ब्लू लाइन होता था उस जमाने में, रेड एंड ब्लू लाइन सब लोग ले लिखा है। 100% सबको लिखाया ही जाता है रेड एंड ब्लू लाइन। सो एवरी टाइम वी राइट ऑन अ रेड एंड ब्लू लाइन व्हेन वी स्टार्ट आवर स्टडीज। 4-line बुक जिसे कहते हैं। अभी तो 2-line बुक है, लेकिन ब्लैंक पेज में तो लाइन ही नहीं है। सो व्हाई वी आर डूइंग इट ऑन ब्लैंक पेज? बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट साइंस। सो 4-line बुक, अभी एक वर्ड लिखा मैंने, हैंड, HAND, हैंड वर्ड लिखा। The moment I write any word, this 4-line book divides that entire area into 3 zones: the upper zone, the middle zone and the lower zone। 3 हिस्से में आपका जो 4-line बुक जो होता था 3 हिस्से में डिवाइड हो जाता था, और आपके वर्ड्स या फिर ऊपर और बीच में रहेंगे, या फिर बीच में रहेंगे, या फिर बीच में या नीचे चले जाएंगे। There will be certain words which will be in upper and middle, certain alphabets in middle and lower, certain alphabets will always remain in middle। यहाँ पे H and D upper and middle में है, A and N middle में है, Y, G वगैरह सब lower में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे words होते हैं। Now look at this, सब लोग ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। Everyone will look at this very carefully। ये hand word को if you look carefully, ये जोन के हिसाब से अगर आप इस हैंड वर्ड को देखेंगे, कुछ तो कमी आपको महसूस होती रहेगी। यू कैन सी समथिंग लेस, समथिंग मिसिंग, समथिंग इनकम्प्लीट हियर। व्हाट यू कैन सी हियर, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। टाइप इन द चैट बॉक्स। हाँ, लोअर जोन को छोड़ो, लोअर जोन यहाँ पे नहीं है, बट अपर एंड मिडिल जोन को देखेंगे
It is not joined. Very good. ध्यान से देखो और देखो और देखो, थोड़ा और ध्यान से देखो, कुछ तो कमी है. N is not joined. ठीक है. ऊपर देखो, अपर जोन में देखो. Look in the upper zone. Look in the upper zone. अपर जोन में देखो. अपर जोन में देखो. H and D is not joined. Very good. H and D को देखो. अभी सब लोग H and D के स्टेम को देखो. टच हो रहा है क्या? रेड लाइन को टच हो रहा है क्या? चेक करो. H and D का जो स्टेम है, रेड लाइन को टच हो रहा है क्या? Alphabets are not joined to the upper zone. Absolutely perfect. H and D stems are not touching the red line. H and D stems are not touching the red line. Very good, very good, very important. Superb. सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे अभी. सब लोग. This is nothing else but by you. ये आप हो. अरे बाप रे सर, मैं हूं. मतलब देखो. This is your head. This is your middle part of the body, and this is the lower part of the body. That means anything written in the upper zone is connected to your intellect. Is connected to your intellect. यानी कि ऊपर वाला हिस्सा intellect है, middle वाला हिस्सा heart and stomach. Heart and stomach, बीच वाला हिस्सा, this is your middle part, and lower zone is the lower part of the body, which is your legs and everything. So this is you. ये आप हो. So upper part is intellect, middle part is heart and stomach, dil or pet. Lower part is the leg and the physical fitness of the body. So my sons and daughters here, आप लोग H और D का स्टेम ऊपर टच नहीं हो रहा है. Yes, H and D stem is not touching up. That means this child is not using his dash. Type in the chat box. H and D stems are not touching in the upper zone properly. That means this child is not using his brain. He is not using his intellect. He is not using his intellect. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इसका हैंडराइटिंग का स्टाइल ऐसा है. T और H का स्टेम देखो. T और H का स्टेम बहुत छोटा है. इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. कौन सी साइज बड़ा है? मिडिल जोन का साइज बड़ा है कि अपर जोन का साइज बड़ा है? विच साइज इज बिग, मिडिल जोन या अपर जोन? यहाँ पे किसका साइज बड़ा है? मिडिल जोन का साइज बड़ा है या अपर जोन का साइज बड़ा है? मिडिल जोन का साइज बड़ा है. मिडिल जोन का साइज बड़ा है. मिडिल जोन का, यानी कि ये हार्ट एंड स्टमक से सोचता है, दिमाग से कम सोचता है. सब लोग ध्यान से सुनना. हार्ट एंड स्टमक से ज्यादा सोचता है, दिमाग से कम सोचता है. अपने दिमाग पे दिल ने कहा टीवी, दिल ने कहा पबजी, दिल ने कहा वीडियो गेम, दिल ने कहा मस्ती, पेट ने कहा चाइनीज बेल, पेट ने कहा पिज्जा, पेट ने कहा बर्गर. दिल और पेट की सुनता है, दिमाग की सुनता नहीं है. दिमाग कहता है पढ़ाई करना जरूरी है, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए, कचरा बाहर की चीजें कम खानी चाहिए. लेकिन दिमाग तो चलाता नहीं है. दिल की सुनता है, दिल की सुनता है. इसके लिए टीवी, मोबाइल फोन, दिल एंटरटेनमेंट. दिल तो पागल है. दिमाग क्या बोलता है? एवरीवन नोस इफ आई एम वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज डेंजरस. एवरीवन नोस कि स्टडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक बच्चे, फिर भी नहीं होता है. बुक जैसे खोलते अंदर से आवाज आती है, कल पढ़ते. लेकिन मैं बोलूंगा टीवी चालू करके देख, आ हा 6 घंटा देख, आ हा नेटफ्लिक्स, अरे बिंदास. दिमाग काम ही नहीं होता. उसका रीजन बता दो आप लोगों को. माय फ्रेंड्स, वी हैव बीन बम्बार्डेड विद इमोशनल. दिल एंड पेट वाला चीजें सबसे ज्यादा टीवी में दिखाया जाता है. सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी लस्सी थी, कुसुम कुटुम, कोई है, फिर कोई है, बिग बॉस, क्राइम पेट्रोल, क्या क्या कचरा चीजें हम देखते हैं. सबसे डेंजरस दिमाग, इंटेलेक्ट को यूज करने वाला ऐसा कोई भी कार्यक्रम, कौन बनेगा करोड़पति छोड़कर, मैंने ऐसा कोई भी कार्यक्रम देखा नहीं जिसमें दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजें देख. सब लोग इसका टांग खींचो, इसका घर बर्बाद करो, उसके घर को आग लगाओ, उसको बदला लो, इससे बदला लो. इसके अलावा हम क्या देखते हैं टीवी में? न्यूज चैनल्स में भी सब नेगेटिव चीजें दिखाई जाती. इमोशनल इमोशनल इमोशनल, एवरीथिंग इज इमोशनल. सो दिल एंड पेट, दिल एंड पेट, दिल एंड पेट. डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी बहुत ही कम बच्चे देखते हैं. Very less kids will use
डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, मैं तो सल्यूट मारूंगा जो बच्चा रोज आधा पौना घंटा डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी या साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए सब चीज करता है। सल्यूट। बच्चे बात ही नहीं करते। क्या बात करते हैं मालूम है? क्या बोला, मैंने बोला, किसने बोला, तेरे बारे में बोला, ऐसा क्यों बोला, काय के लिए बोला, कभी बोला, कौन बोला, ये सब बोला बोला चलता रहता है। यस माय फ्रेंड्स, इंटेलेक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। सबसे डेंजरस बता दूं आप लोगों को, सबसे डेंजरस, सभी लोग आज के बाद अगर पेरेंट्स बाजू में बैठे हैं, आज एक दूसरे के साथ वादा करेंगे, सबसे डेंजरस खाना खाते हुए टीवी देखना। The most dangerous thing which is happening in every single home is while eating, you watch TV. While eating, you watch TV. Dangerous. अभी टीवी में कोई सीन चल रहा है, नेगेटिव सीन चल रहा है, मर्डर सीन चालू, आप लोगों को अच्छा लगता है मर्डर सीन? अच्छा लगता है? यू लाइक वेरी, हाँ रे बहुत अच्छा लगा, बराबर काटा नहीं यार, थोड़ा लेफ्ट से काटता तो अच्छा रहता था, ऐसा लगता है? नो, वी गेट अ वेरी बैड इमोशनल फीलिंग। उसी टाइम पे दाल चावल, we are eating food, so that energy and this food goes inside, और दुनिया भर की बीमारी शरीर में रहती है। साइकोसोमैटिक डिसीजेस, जितने भी बीमारियां हैं, that is साइकोसोमैटिक। आज के बाद से खाना खाते वक्त डिस्कवरी हो, नेशनल जॉब, कोई भी चीज चुपचाप बैठकर खाना खाएं। 15-20 minutes, the family which eats together remains together, no watching of। खाना शरीर पे लगना चाहिए, इसके लिए 15-20 मिनट शांति के साथ माँ बाप सब लोग साथ। The family which eats together stays together, remains together। टीवी देखते हुए खाना, खाना खाते हुए टीवी, 15-20 मिनट में तो खाना खाते हैं हम लोग। काय के लिए देखने का? क्यों उस एनर्जीज को अपने अंदर लेकर आए, उसके बाद सब चीज करो। तो अभी अपने जोन्स को कैसा बैलेंस करना चाहिए, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। हाउ टू बैलेंस द जोन माय फ्रेंड्स। अपने को जोन को ना, अपर जोन को मिडिल जोन का डबल करना है। यस, थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी देख सकते हैं 45 मिनट्स, लेकिन कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं। मैंने क्या कहा? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सर, ये समझ में आया ना? कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर चीज लिमिट में करो। मोबाइल फोन लिमिट में, टीवी लिमिट में, सब चीज लिमिट, सब चीज में दायरा होना चाहिए, लक्ष्मण रेखा होना। देयर शुड बी लक्ष्मण रेखा फॉर एवरीथिंग। तो क्या आएगा? मोबाइल भी है, टीवी भी है, पढ़ाई भी है, सब मस्ती के साथ हम लोग जिंदगी चल सकते हैं। ये सब कुछ लिमिट में होना चाहिए, सब कुछ लिमिट, ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? हाउ टू बैलेंस द जोन, सब लोग स्क्रीन पे देखें, बिकॉज अभी मैं आज ये सिखाऊंगा जाने के पहले। बिफोर वी एंड द सेशन हियर, आई एम गोइंग टू टीच यू क्या करना चाहिए। मिडिल जोन को और लो अपर जोन को एंड लोअर जोन को, मिडिल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल करना चाहिए। कैन यू सी द साइज? अपर जोन should be approximately double the middle, approximately, अंदाजा मिडिल जोन का डबल होना चाहिए, ठीक है? लोअर जोन भी मिडिल जोन का डबल होना चाहिए, ये याद रखना। वो बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा, सब लोग ध्यान से देखिए। मिडिल जोन का डबल अपर जोन, मिडिल जोन का डबल लोअर, अप्रोक्सीमेटली, अंदाजे तरीके से अपने को इस चीज को सेट करना। इससे होगा क्या? इंटेलेक्ट मजबूत, कंट्रोल एंड हार्ट एंड स्टमक पे कंट्रोल, और लोअर जोन परफेक्ट, यानी कि फिट एंड फाइन, आप फिजिकली हेल्दी, नहीं तो लेथार्जी, कंटाल आता है। किधर जाने का? थोड़ा दुकान से सामान लेके जाने का है, कंटाल आता है। मम्मी को बोलते हैं, मम्मी तू ही चले जाना। यस, हाँ, ये वो रेड एंड ब्लू लाइन नहीं है, ये मैंने आपको बताने के लिए किया है। आई एम जस्ट मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड कि अपर जोन शुड बी डबल द मिडिल जोन एंड लोअर जोन आल्सो शुड बी डबल द मिडिल, अप्रोक्सीमेट। कैसा लिखना है मैं आपको स्क्रीन पे लिखकर बताऊंगा। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये हो गया करेक्शन जोन का। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट वी डोंट एडवाइस। अभी ये खतरनाक है, अगर ये दो डी आपके हैंडराइटिंग में है तो दे आर द डेंजरस वन, दिस डी एंड दिस डी। ये अगर आप लोग के हैंडराइटिंग में है तो ये अच्छा नहीं है। तो क्या है ये डी और किस तरीके का डी लिखना चाहिए? बिकॉज डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अल्फाबेट। डी में गड़बड़, पढ़ाई में गड़बड़, रिलेशनशिप में गड़बड़, ठीक है ना? स्मॉल डी कैसा लिखना चाहिए, सब लोग स्क्रीन पे दें। पहला डी ये कैसा होता है मालूम है? हाउ वी राइट दिस डी? वी स्टार्ट हियर, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, फिर इसको ऐसा कर्व बनाकर ऊपर जाके लूप बना के नीचे आते हैं।
This is how we write the first D. Again, we start here, we make a curve, we go up, make a loop and come down. इस तरीके का जो डी लिखता है, those people are sensitive to personal criticism. यानी कि ये बहुत ही सेंसिटिव बच्चे होते हैं, बहुत सेंसिटिव. थोड़ा भी डांट दो, किसी को कुछ बोल दो, अगर मम्मी ने तुमको कुछ बोल दिया, डैडी ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ, मुंह सूज जाएगा हमारा, फिर हम वो बात सुनेंगे ही नहीं. जबकि वो बात सुननी चाहिए आपके भले के लिए, लेकिन हमारे अंदर गुस्सा है. वी आर वेरी सेंसिटिव, वी आर वेरी, थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, अब मुंह सूज जाता. अब अच्छा, टीचर का इंटेंशन क्या है? तुझे सुधारने का, लेकिन तू सुधर नहीं बताया. अभी सुनो, एक इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को. 2011 में जब मैंने साइंस सीखा था, 10-11 में, तो आई कॉल्ड ऑल द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, लाइक आप सबके, आप लोग को ऐसा बुलाया मैंने, मेरे बच्चे लोग को बुलाया, और फिर सबको ये बता रहा था ग्राफोलॉजी से, कि मैं आप लोग को बता रहा. तो ये डी वाला टॉपिक आया. सब लोग ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज है. ये डी वाला टॉपिक आया. One child stood up and said, sir, I have this D. जैसे कि इधर काफी सारे लोग लिख रहे हैं, yes, very true, very true. तो ये बच्चे ने बोला कि I have this D. तो मैं बोला क्या हो गया? सर आपको याद है 6 महीना पहला अलजेब्रा के लेक्चर में आपने मुझे डांटा था. अब मैं सोच रहा हूँ कब डांटा था. I forgot, because डांटने वाला भूल जाता है, डांट खाने वाला याद रखता है. Then what happened? बोले सर, ध्यान से सुनो सब लोग, 15 दिन तक I didn't touch the algebra book. For the next 15 days I didn't touch the algebra. मैं बोला नुकसान किसका? मेरे दोस्तों, नुकसान दोनों का. yes or yes? वो बच्चे का भी नुकसान हो गया. and what was my intention? वो सुधरे, वो बच्चा सुधरे, लेकिन ना वो सुधरा, ना मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना उसने मैथमेटिक्स सीखा. तो we become very sensitive to person. तो this D is not good, this D is not good. इसको निकालना है अपने को. एक और D है, there is one more D. ऐसा वाला डी, दिस ऑल्सो नॉट गुड. ये भी अगर है, बाकी सब डी चल जाएगा. परफेक्ट डी बता रहा हूं मैं, आप इसके बाद बताऊंगा हाउ टू राइट अ परफेक्ट डी. नाउ दिस डी इज नेगेटिव. ये ऊपर से आता है, it comes from the top, makes a loop and on the left side. फिर से देख लो, ये ऊपर से आता है, नीचे जाता है, और लेफ्ट के तरफ एक कर्व बनाता है. सो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं चीटिंग सेल्फ. खुद को तकलीफ देना. खाना नहीं खाएंगे, घंटों बैठे रहेंगे, घंटों खड़े रहेंगे, कोई कुछ डांट देगा तो फिर खुद को तकलीफ, दूसरों को नहीं, खुद को तकलीफ देंगे. These people have the habit of punishing themselves. They will punish themselves. कुछ हो गया तो they will tell, no, मेरी गलती है ना, मेरी गलती, हाँ मैं करता हूँ, मैं सब चीज करूँ, यस ये मेरी गलती. एंड दे विल स्टार्ट पनिशिंग सेल्फ. खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, घंटों बैठ कर पड़ेगा, घंटों बैठ के सोएगा, घंटों बैठ के, मतलब खुद को तकलीफ में डालेगा. लॉन्ग टाइम तक खड़ा रहेगा, लॉन्ग टाइम तक बैठा रहेगा. दे हैव द हैबिट. ये अच्छा नहीं, इट्स नॉट गुड. सो व्हाट इज अ परफेक्ट डी? चलो देखते हैं, परफेक्ट डी पे आते हैं. लेट अस कम टू द परफेक्ट डी. कैसा लिखना चाहिए? सब लोग ध्यान से, इस तरीके से लिखना चाहिए. ठीक है, कैसा लिखना चाहिए सब लोग ध्यान से देखें. सब लोग, वी स्टार्ट हियर. अच्छा, वो स्टेम को टच होगा या नहीं टच होगा, चले. whether it is touching the stem, whether it is not touching the stem, open रहेगा या touch होगा, nothing. We start here, we make a curve. सब लोग ध्यान से, ये ऊपर जाएगा और उसी स्टेम को नीचे रिट्रेस करेगा. रिट्रेस. फिर से देख लो, सीट once again. ये यहाँ से कर्व जाएगा, ये कर्व जाएगा, it will go up and it will retrace and get it down. Once again, फिर से देख लो. हाँ, if you are writing it, salute. अगर आप ऐसा लिखते हो तो कोई टेंशन नहीं. ये ऐसा कर्व जाएगा, ऊपर जाएगा और उसी को रिट्रेस करके नीचे लेकर. हाँ, and what should be the height of the stem? Type in the chat box. स्टेम का हाइट क्या होना चाहिए? सोचो, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. ये स्टेम का हाइट क्या होना चाहिए? ये साइज क्या होना चाहिए? ये स्टेम का साइज क्या होना? अभी डिस्कस किया था. कितना बड़ा होना चाहिए? कितना बड़ा? हाँ, कितना बड़ा होना चाहिए? अभी डिस्कस किया था. डबल द साइज ऑफ द, वेरी गुड, डबल द साइज ऑफ द मिडल जोन. डबल द साइज ऑफ द मिडल जोन. मिडल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल होना है. हर जगह याद रखना, ऊपर वाले डंडे मिडल जोन से डबल.
must be double the size of the middle. Super, very good, super. समझ में आया ये correction? Understood everyone? सब लोग को समझ में आया? क्या कर रहा, देखो कितने corrections बता दिए मैंने अभी, ठीक है ना? अभी नेक्स्ट सबसे अभी 2 और corrections बाकी हो, तो सबसे ज्यादा important 12:23 हो रहा है परफेक्टली। 5 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, चलेगा ना? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट टी। टी में गड़बड़ अपने जिंदगी में 80% गड़बड़। टी में गड़बड़ 80% गड़बड़। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इज टी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फाबेट इज टी। टी में भी 2 चीज होती है। टी हैज 2 पार्ट्स, the stem and the crossbar. The stem and the, we are only talking about small t. हम लोग ग्राफोलॉजी में छोटे अल्फाबेट्स की ही चर्चा होती है, बड़े अल्फाबेट्स की चर्चा नहीं होती है। एक ही कैपिटल आई, दैट्स इट, उसको छोड़ के सब छोटा अल्फाबेट्स की डिस्कशन कर रहे हैं। the stem and the crossbar. तो जब भी स्टेम की चर्चा होती है तो कंप्लीट स्टेम होना चाहिए, नीचे का कर्व कंप्लीट होना चाहिए। कुछ लोग आधा स्टेम लिखते हैं, which is not right. I am making it very clear once again. Whenever I am talking about T का stem, so it should be the complete curve. नीचे का कर्व कंप्लीट होना चाहिए। जो भी बच्चे नीचे का कर्व कंप्लीट नहीं करते, वो जिंदगी में भी खुद के बारे में इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हैं। So stem should be complete, the curve should be complete, ये याद रखना। So what is T and the crossbar? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग ध्यान से सुनना। T आप हो, T is you. Yes, तो अगर लोअर कर्व नहीं लिखते हैं तो which is wrong. You should write the complete curve. आज से complete curve लिखना प्रैक्टिस करना, very very important. complete curve होना चाहिए। complete curve नहीं है, गड़बड़ है आपकी पर्सनालिटी में, आप कंफ्यूज्ड रहोगे जिंदगी में हमेशा। इसके लिए टी आज से कंप्लीट करेंगे सब लोग। हाँ, तो ये स्टेम का मतलब आप हो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दिस स्टेम मींस यू, दिस इज यू। एंड क्रॉस बार टेल्स अस, सब लोग ध्यान से सुनना। द क्रॉस बार टेल्स अस कि हाउ मच पोटेंशियल यू आर यूटिलाइजिंग इन योर लाइफ, ठीक है ना? स्टेम मींस यू, स्टेम का मतलब आप, और क्रॉसबार क्या बताएगा मालूम है? आप आपके काबिलियत को किस लेवल तक इस्तेमाल करते हैं। सबके अंदर पोटेंशियल है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स सबके पास है, लेकिन क्या सब लोग अपने पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, वो अभी आपको पता चलेगा। सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना। टी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। टी परफेक्ट 80% काम हो गया। टी और जोन को सेट कर दिए, टी और जोन को सेट कर दिए, मैक्सिमम चैलेंजेस लाइफ के ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो कर्व कंप्लीट नहीं है, गड़बड़ है, याद रखना। मैं सब चीज नहीं बता सकता, मैंने बताया ना कि 40-50 घंटे लगते हैं पूरा चीज बताने के लिए, इतना डिटेल में है। A to Z अल्फाबेट है, टी है, ये है, आई कैन ओनली स्पीक द करेक्टेड वंस। एज आई सेड ना, 15-20 हजार रुपए चार्ज करता हूं मैं पूरा चीज बताने के लिए, एक जन। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला टी पे ध्यान देंगे। आफ्टर मेकिंग द स्टेम, द पर्सन लिफ्ट्स द पेन एंड पुट द क्रॉसबार एट द टॉप। कुछ लोग क्रॉसबार बहुत ऊपर डालते हैं, क्रॉसबार एट द टॉप। सेकंड होते हैं क्रॉसबार बीच में डालने वाले। आई यूज्ड टू पुट द क्रॉसबार इन द मिडल। मुझे 2010 में जब मैं 30 साल का हुआ तब जाके मालूम पड़ा, 25-30 साल का हुआ तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि मुझे क्रॉसबार मैं बीच में डालता हूँ। आप लोगों को तो अभी बता रहा हूँ, मेरा बच्चा है 8 साल का, तो अभी से ही क्रॉसबार ऊपर डालता है, मिडिल में डाल। मैक्सिमम लोग, यस यस, मेजॉरिटी ऑफ यू, 1 या 2 जन होगा जो क्रॉसबार ऊपर डालता रहेगा। तीसरा वाला जो क्रॉसबार बहुत ही नीचे डालते, दोज हू पुट देयर क्रॉसबार वेरी मच लो, क्रॉसबार एकदम नीचे। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो भी ऐसे सेशंस में आते हैं, यस एब्सोल्यूट मिडिल में ही गिरता है मेरे दोस्तों, वो आदत पड़ जाती है, मिडिल या लोअर गिरता है। तो क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट।
जो भी people, those who put their crossbar at the top will have very high goals in life. Very high goals in life. लाइफ में बहुत बड़े गोल्स रहेंगे, गोल्स भी बड़े रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, सेल्फ एस्टीम भी हाई रहेगा, इम्यून सिस्टम भी हाई रहेगा, जिसकी वजह से बीमारियां नहीं आएगी शरीर में, हमेशा एक्टिव रहोगे, अलर्ट रहोगे, सब चीज रहोगे और बहुत कामयाब होगे। माय मदर, सब लोग ध्यान से सुनना, माय मदर इज डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 1970s। 1970 में मेरी मम्मी ने डिप्लोमा किया था। उसको स्कूल में पढ़ने जाने नहीं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे पुराने जमाने में, वो लड़ते थे माँ बाप से, तो मम्मी डैडी उनको कमरे में, डैडी स्पेशली उनको कमरे में बंद कर देते थे। तो हमारे कमरों के खिड़की बड़े बड़े होते थे गांव में, तो उसमें से कूदकर पीछे के रास्ते से नदी में तैरकर दोस्त के घर में जाके वो जाके कपड़े बदलकर पढ़ाई करने जाती थी। हाई गोल्स। इधर माँ बाप को, टीचर को, बच्चों को, घर वालों को किती वेळा सांगितला 10वी मध्ये आहेस तू, अभ्यास कर, काय करतोस, पीछे पड़ना पड़ता है क्योंकि तेरे जिंदगी में कोई बड़े लक्ष्य नहीं है। बिग गोल्स, मुझे कुछ करके दिखाना है, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर हर इंसान के अंदर, इधर बैठा हुआ हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है। सब, एवरी बॉर्न चाइल्ड इज जीनियस, every born child is genius but only 2% become genius। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हर बच्चा जीनियस होता है लेकिन 2% ही जीनियस बनते हैं, क्योंकि वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं करते, बड़े गोल्स नहीं रखते, छोटे छोटे गोल्स रखते हैं, वो भी हाफ हार्टेड, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो सेकेंड वन एवरेज गोल्स, एवरेज एवरेज, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़े, कभी खुशी कभी गम। तो एवरेज सेल्फ एस्टीम, एवरेज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एवरेज इम्यून सिस्टम, और यहाँ पे शरीर में एलर्जीज रहेंगे। फर्स्ट वालों को तो बीमारियां भी नहीं आएगी उसको, क्योंकि सेल्फ एस्टीम हाई है। सेल्फ, जिसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम हाई होता है, दैट इज कनेक्टेड टू द न्यूरॉन्स एंड दैट इज कनेक्टेड टू योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। मेरे दोस्तों, मैं भी सेकंड वाला ही लिखता था और कभी कभी थर्ड वाला भी लिखता, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। तो जब जागो तभी सवेरा, आज से शुरू करते हैं बदलने के लिए। क्या फर्क पड़ता है अपने, किसको मालूम था कि ये सब साइंस है, मुझे भी नहीं मालूम था। आप लोग को तो कितने एज में मिल रहा है, फ्रॉम 8 to 12 स्टैंडर्ड के बीच में मिल रहा है, हमको तो कभी मिला 40, मतलब कितना सब कुछ बिगड़ जाने के बाद आपको मिला। यू आर लकी, यू आर लकी कि आपको इतने कम एज में मिल रहा है। माय सन इज लकी कि उसको बहुत कम एज में मालूम पड़ रहा है। आर यू विथ मी? सो डोंट फील बैड अबाउट इट। जब जागो तभी सवेरा। आज से शुरू करें कि नहीं करें, आज से सुधार देते हैं, जो हो गया वो हो गया, रात गई बात गई, जो बीत गई वो बात गई, जाने दो। मैं भी सेकेंड ही लिखता था, आई ऑल्सो यूज्ड टू राइट द सेकेंड वन। महीने में एक बार बीमार, कभी सर्दी कभी खांसी, कुछ ना कुछ चल रहा, एलर्जी बिलर्जी चलता रहता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मेरे दोस्तों जो एकदम नीचे डालते हैं, दे आर वेरी लो गोल्स इन लाइफ, दे हैव वेरी लो गोल्स इन लाइफ। यस, वी कैन फाइट इट आउट, वी कैन फाइट इट। आज से हम सब बदलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई एम ट्राइंग द लेवल बेस्ट। तो लो गोल्स हम लोग ऐसा नहीं डालेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या करते हैं मालूम है, कभी कभी क्या करते हैं सब लोग, अभी देखे थे ना, कुछ लोग क्रॉस बार पीछे डालते हैं, क्रॉस बार बिहाइंड, कुछ लोग क्रॉस बार स्टेम पे डालते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग क्रॉस बार जो है बहुत आगे डालते हैं। अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे आई के डॉट के बारे में, अब भी डिस्कस किए थे आई के डॉट के बारे में। यस, पीछे डालना मतलब क्या है, पीछे डालना, जो भी क्रॉस बार या डॉट पीछे डालते हैं, व्हाट आर दे, अब भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने। कुछ भी पीछे गिरा, पास्ट में, पास्ट में, बिहाइंड टाइम, वेरी गुड शिवेश, बिहाइंड टाइम। आज का काम कल, कल का काम परसों, जितनी भी जल्दी क्या है, जब जीना है परसों, इसके लिए कहते हैं बिहाइंड रियलिटी। बिहाइंड, जो भी स्टेम पे डालते हैं, एट रियलिटी, यानी कि एकदम ध्यान, अवेयरनेस, फोकस, सब चीज एकदम 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 रियलिटी के पर रहेंगे जो स्टेम पे डालेंगे।
और जो स्टेम के आगे डालते हैं अहेड ऑफ रियलिटी, फटाफट 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 आगे का सोचना, आगे का सोचना, आगे का सोचना, आगे का सोचना। अब भी क्या करेगा, अब भी आगे का सोचेगा, फिर कल बैठ के क्या करेगा, आगे का सोचता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। ahead of reality, what will happen tomorrow, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो कल क्या होगा, कल क्या होगा सोचने में आज कुछ नहीं करता है। समझ में आया सबको? तो क्या करना चाहिए, स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से, हाउ टू राइट अ परफेक्ट टी, हाउ टू राइट। तो परफेक्ट, एक तो पहला तेरा स्टेम परफेक्ट, मेक द स्टेम परफेक्ट, पुट द क्रॉस बार एट द टॉप। सब लोग ध्यान से देखेंगे टी कैसा लिखना चाहिए, क्रॉस बार एट द टॉप, क्रॉस बार एकदम ऊपर, फिर कैसा, क्रॉस बार ऑन द स्टेम, ना पीछे ना आगे, स्टेम के ऊपर गिरना चाहिए, क्रॉस बार लॉन्गर, थोड़ा लंबा होना चाहिए। सब लिखकर बताऊंगा, डोंट वरी, एंड में मैं स्क्रीन पे लिखकर बताऊंगा। क्रॉस बार लिटिल लॉन्गर, क्रॉस बार लंबा होना चाहिए, लंबा रहेगा, एंथुजियाज्म रहेगा, एनर्जी बनी रहेगी आपकी। लॉन्गर द क्रॉस बार, लॉन्गर इज द एंथुजियाज्म, बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड्स, यानी कि जितना लेफ्ट में है उतना राइट में है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जो भी लेफ्ट में और राइट में इक्वली क्रॉस बार डालते हैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट। मतलब ये बड़े बड़े लोगों को बताता हूं, लोग परेशान हो जाते हैं, सर क्या बताया आपने, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट इज द पास्ट एंड राइट इज द फ्यूचर एंड दिस इज द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में रहकर पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए फ्यूचर के तरफ जाना, ये होता है क्रॉस बार का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर पास्ट में तुमने मैथमेटिक्स में जो जो गलतियां की है, अगर ऐसा क्रॉस बार डालोगे तो आप पास्ट की गलतियों को सुधारते हुए फ्यूचर में उसको वापस रिपीट नहीं करोगे। जो पीछे क्रॉस बार डालता है वो बार बार वही गलतियां करता है, जो आगे क्रॉस बार डालता है वो भी बार बार सेम गलतियां करता है। मम्मी टीचर बोलेगी पिछले बार भी तूने सेम मिस्टेक किया, अभी भी क्या, अरे तेरी भूल गया, दत्त तेरी भूल, क्योंकि तू या फिर फ्यूचर में है या फिर तू पास्ट में। आज के बाद स्टेम के ऊपर डालेंगे, एकदम मस्त में डालें, बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड। देखो एग्जांपल दिखा रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, देखो टी को कैसा दिख रहा है, कहां पर है टी, एक तो टी का स्टेम का साइज, टी के स्टेम का साइज डबल द मिडिल जोन, डबल द मिडिल जोन, क्रॉस बार एकदम ऊपर, क्रॉस बार स्टेम के ऊपर, क्रॉस बार लंबा, क्रॉस बार लंबा, इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। अरे विथ मी, देख लिया सब लोगों ने, ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन है। टी सुधारा 80%, क्योंकि तेरे गोल्स बड़े हो गए, तेरे अंदर की एनर्जी बदल गई, तू एकदम ध्यान देता है, सब कुछ सुधार देगा, तो प्रैक्टिस लगेगा मेरे दोस्तों। 21 डेज के 3 टुकड़े, 21 डेज के 3 टुकड़े, 21 डेज कुछ बदलेंगे, 21 डेज कुछ बदलेंगे, 21 डेज कुछ बदलेंगे और सबमिट करेंगे। जो सबसे अच्छी तरह से लिखेगा, सबसे अच्छी तरह से फाइनल सबमिट करेगा, उसको बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा हमारे तरफ से, ठीक है। वो बताएंगे किस तरीके का गिफ्ट होगा, हम लोग सब बताएंगे वेडनेसडे को जब 3rd सेशन होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से टी के क्रॉस बार को लिखना चाहिए, टी को लिखना चाहिए। अभी लास्ट वाला, द लास्ट वन, इंपॉर्टेंट पैरामीटर जी जे वाई जेड। लोअर जोन में हमेशा लूप होना चाहिए। जी जे वाई जेड में देयर शुड बी लूप्स, परफेक्ट लूप्स, देयर शुड बी परफेक्ट लूप्स। एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द लोअर जोन, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द लोअर जोन, लोअर जोन का साइज क्या होना चाहिए, अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, लोअर जोन का साइज क्या होना चाहिए, लोअर जोन का साइज क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द लोअर जोन, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डबल द साइज ऑफ द मिडिल जोन, एब्सोल्युटली। और परफेक्ट लूप होना चाहिए, देखो इस तरीके से लोअर जोन का साइज डबल करो मिडिल जोन से अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा माइनस प्लस होगा तो चले, और मिडिल जोन जो है हाफ हो गया, और इसमें लूप होना चाहिए, लूप लूप, ये परफेक्ट लूप आपको फॉर्म करना है। तो जो लोग भी परफेक्ट लूप डालेंगे उनको हेल्दी फिजिकल ड्राइव रहेगा, हाँ, मनी एंड रिलेशनशिप विल स्टे, कंप्लीशन रेशियो, यानी कि जो भी चीज आप हाथ में रखो,
यानी कि टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप, माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ अच्छा, कोई भी, और पैसा भी टिकेगा, मनी भी टिकेगा, हेल्थ भी टिकेगा. यू विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिकॉज योर लोअर जोन इज योर लेग. आप एक्टिव रहोगे, फिजिकल फिटनेस आपका स्ट्रांग रहेगा. यस, विदाउट लूप इज नॉट बैड इंडिकेशन, विदाउट लूप इज इनकम्प्लीटनेस. लूप बराबर नहीं रहेगा तो सब चीज इनकम्प्लीट रहेगा. लूप बराबर नहीं रहेगा तो ये सब चीज, फिजिकल फिटनेस नहीं रहेगा, कंटाल आएगा, लेजीनेस रहेगा, मतलब आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे. फिजिकली फिट के लिए अपने को लूप्स डालना बहुत जरूरी है. और मेन चीज क्या है इसमें, आप रिलेशनशिप को मेंटेन करोगे और इतनी अच्छी चीजें हो जाएगी कि कोई भी चीज ठहरेगा. आप चीजें संभाल के रखो. कोई भी चीज को संभाल के रखने के लिए सैक की जरूरत है, सैक की जरूरत है ना, एक एक गोनी की कोई थैली की जरूरत है, ये वो थैली है. This is the sack in which money will stay, relationship will stay, good things will stay, your energy will stay, your physical drive will stay, everything will stay. कुछ भी चीज को रुकने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा सैक होना चाहिए जिसके अंदर हम चीज को रख सके. So this is the, मतलब इसका जो कनेक्शन है ना, आप जब बड़े होंगे तो मैं, जिसको भी सीखना है वो सीख लेना. Z नॉर्मल लिखेगा चलेगा, Z नॉर्मल लिखेगा चलेगा, लेकिन GJY ऐसा ही लिखना, GJY ऐसा ही लिखना. Z नॉर्मल लिखेंगे तो चलेगा. आई रिपीट, GJY ऐसा ही लिखना, Z नॉर्मल लिखेंगे तो चलेगा. इज इट ओके? Z नॉर्मल लिखेंगे तो चलेगा. यहां तक ठीक है? So these are the various aspects which needs to be changed. सब एक साथ चेंज करेंगे? No. Don't change everything, my friends. सब एक साथ नहीं चेंज करेंगे. कैसा चेंज करेंगे? सब लोग ध्यान से मेरी बात. दिस इज व्हाट इज ग्राफोलॉजी. बहुत बड़ा साइंस है. 2 घंटे में मैं सिर्फ आपको 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो आपके जिंदगी में बदलने चाहिए वो मैंने बता दिया. अभी सिग्नेचर कैसा होना चाहिए वो आज नहीं डिस्कस करेंगे. सिग्नेचर आज नहीं, बाद में, यानी कि जब वेडनेसडे को थोड़ा सा 10-15 मिनट उसको रखा है अलग से, क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना चाहता. एकदम ध्यान से. सिग्नेचर अभी नहीं बदलेंगे, मैं बताऊंगा, सब चीज बताऊंगा, मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा. इंटरेस्टिंग है ना, मजा आ रहा है. आज से सिर्फ हैंड राइटिंग पे काम करेंगे. क्या करेंगे हैंड राइटिंग पे काम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है ना? वेडनेसडे को बताऊंगा बेटा सिग्नेचर, डोंट वरी. कुछ चीजें कल के लिए रखो. ग्राफोथेरेपी, सबसे पहले 21 डेज आपको क्या करना है. सब लोग ध्यान से, अभी अभी एकदम ध्यान. अभी तक मस्ती किया रहेगा, ध्यान नहीं दिया रहेगा, आधा इधर. अभी से एकदम ध्यान देंगे. ठीक है? फर्स्ट 21 डेज अपर जोन और टी. 21 दिन तक आप अपर जोन को और टी को एकदम परफेक्ट करो. सब चीज एक साथ नहीं करना. सब चीज एक साथ करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी चीज सुधरेगा नहीं. तो सबसे पहले अपर जोन और टी को सेट करना. अपर जोन को क्या करना है? मिडिल जोन से डबल. मैं सब लिख के दिखाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, सब लिख के दिखाऊंगा. अभी सिर्फ देखो ध्यान से. अपर जोन को क्या करना है? अपर जोन को क्या करना है? मिडिल जोन का डबल करना है. अपर, लोअर जोन पे ध्यान ही मत दो. 21 दिन तक डोंट लुक एट द लोअर जोन, जैसा आता वैसा लिखो. पहला अपर जोन पे काम करेंगे और टी पे काम करेंगे. टी का क्रॉस बार किधर होना चाहिए? ऊपर, लंबा, ऑन द स्टेम, है ना? बताए थे. टी का स्टेम मिल जाएगा, मिल जाएगा. अभी सर लोग से पूछ लेना. सब लोग ध्यान से सुनेंगे. ये रिकॉर्डिंग पे है, दिस इज ऑन रिकॉर्डिंग, डोंट वरी. सब चीज आपको मिलेगा. बहुत प्रेशियस चीजें हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. संभालना इसको, इस्तेमाल. देखो मेन चीज क्या होता है मेरे दोस्तों, नॉलेज जब फ्री में दिया जाता है ना उसकी वैल्यू नहीं करते. नॉलेज जब फ्री में दिया जाता है उसकी वैल्यू नहीं करते. यू शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल टू रियल एकेडमी, एज आई मेंशन्ड. दिस ओनली क्लास जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है. ठीक है ना? सब लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे. अभी क्या करना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, सब लोग. बाकी है अभी, वेट, बाकी है. देयर इज मेनी थिंग लेफ्ट टू मेक यू टू अंडरस्टैंड. यस, अभी टी का स्टेम, एच का स्टेम, डी का स्टेम सब डबल और टी का क्रॉस बार ऊपर और एकदम. 21 दिन तक ये करें. फिर क्या करना? नेक्स्ट 21 डेज डी पे काम करना और GJYZ पे काम करना. लोअर जोन पे काम करना और डी पे काम करना. लोअर जोन पे काम करना, डी पे काम. 21 दिन तक ये करने का, एकदम स्लो जाने.
घाई नहीं करने का, अपने पास अच्छा खासा वक्त है, अपने को 2 से 3 महीने का, मतलब ये पैटर्न है, इस तरीके से करना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 21 डेज हम आई पे काम करेंगे, कैपिटल आई जो हम लोग ने डिस्कस किया था, और फिर स्मॉल आई और जे, ये जो आई और जे पे डॉट्स वाले पे काम करेंगे। 21 डेज के 3 सीक्वेंस, तो हो जाएगा कुल मिला के 63 डेज, है ना। यस, 63 डेज टोटल आपको करना। कैसा करना, ऐसा ही लिख के नहीं होगा, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। यू कैन नॉट सिंपली राइट डॉट ऑन INJ। क्या करना चाहिए, सब लोग स्क्रीन पे, सब लोग स्क्रीन पे ये सेंटेंसेस सब लोग कॉपी करेंगे अभी। everyone will copy these sentences right now। सबके सब लोग, everyone will write this। कॉपी करो, अपने ब्लैंक पेज पे कॉपी करो सब लोग, और जैसे कॉपी करके हो जाएगा, टाइप डन इन द चैट बॉक्स। आराम से लिखो, टेक योर ओन टाइम है, वक्त हमारे पास 15 मिनट है। वी आर अबाउट टू फिनिश ऑन द राइट टाइम। सेंटेंस है, माय फोकस एंड कंसंट्रेशन इन माय स्टडीज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। आई एम एबल टू। स्क्रीनशॉट निकालो, लेकिन लिखो ना बेटा, थोड़ा सा लिख, क्योंकि हैंडराइटिंग है तो लिख के करो, थोड़ा सा मस्ती, है ना। My focus and concentration in my studies is increasing day by day। I am able to remember and recollect whatever I have studied। I am gaining inner peace of mind। My interest, पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, पैराग्राफ में लिखो, सब लोग लिखेंगे। Everyone will write, everyone will write, everyone will write। एक भी जन छोड़े, मुझे नहीं दिख रहा है कि whether you are writing or not, but I trust you। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग लिखते रहोगे। यू ऑल आर गुड स्टूडेंट्स। रियल एकेडमी के बच्चे रियल होते हैं, असली होते हैं, सुनते हैं बात। सब लोग लिखेंगे, बाजू में पेरेंट्स भी बैठे हैं, वो भी लिख लो सबके। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों के लिए सुधारना है क्या, सब सुधर सकते हैं अपना। दिस इज अ थेरेपी विच आई एम गिविंग। 15-20 हजार रुपया चार्ज करता हूँ एक एक जन से। फर्स्ट सिटिंग दो, सेकंड सिटिंग दो, थर्ड सिटिंग दो, फोर्थ सिटिंग अपना सिग्नेचर। जैसे लिख के हो गया, टाइप डन इन योर चैट बॉक्स, टाइप डन इन योर चैट बॉक्स। yes, you have the class tomorrow। कल मेमोरी टेक्निक के ऊपर हम लोग 2 घंटा we will be focusing on memory techniques। क्वेश्चन आंसर्स कैसा याद करना, फॉर्मूलाज टेबल्स कैसा याद करना, हार्ड वर्ड्स कैसा याद रखना है, मीनिंग्स कैसा याद रखना है, ये सब चीज कल सीखेंगे। मेरे एक बहुत ही पावरफुल मेंटर है, दोस्त हैं, जो ये आपको सिखाएंगे कल। those who have done, type done in the chat box, type done in the chat box। I'll wait for 1 more minute। एक और मिनट रुकूंगा, so that everyone has done it। Very good। One more minute। Done। 30 seconds, last 30 seconds। हाँ, सिंपल डी लिखेगा चलेगा, जो डी मैंने बताया वैसा लिखो, तो उससे एडवांटेज होगा। हर चीज जो मैंने बताया उससे एडवांटेज होगा।
ठीक है, चलो लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, स्टॉप राइटिंग. सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे. Kaustubh sir, I want to share the screen from my mobile phone. Can I do it? Not able to do it. Yes, sir. Yes, sir. Just give me 1 minute, 30 seconds more. I wanted to share something else, and here. Kaustubh sir, actually, I want to share the screen of the Zoom. Okay. So here it is From going your to the mobile. it is going to the mobile. That's the only check. Here also you can share. Open audio screen. Give me 30 seconds. Just students wait, because I want to show you everything exactly what needs to be done. We are very sorry that we didn't cross-check it earlier. Rajesh sir, Ah. Rajesh sir. So you can even share the screen of laptop also. Sir, on laptop we cannot write, because here on this thing I have a stylus, so I can write and show it. So that is what I'm saying. Basically, the mobile phones, that screen used to get shared, but right now it is not getting shared. So let us see. Hello. Sir, you can share whiteboard. Is the option visible? Right now, you want me to check it once again? Yeah. On Yes. mobile also you can check it. So just give me time. No, it is not coming, sir. It is not sharing white screen. It is sharing something else. Okay. That is how it is. Give it. I'll try to write on that only. I'll show it on the screen right now. So friends, Okay, sir. just 10 seconds more. We are done with it. We'll show you right now how to write onto the screen. Yes, you can see the screen here right now. Very good. So, what is the first sentence? The first sentence is the focus and concentration. So, when you will be practicing, आपको क्या करना है? The okay, ये reverse दिख रहा है.
onto the screen everyone. So whenever we be writing the focus and concentration, so first line हम लोग ध्यान से देखेंगे, the focus. तो जब आप लिखोगे तो आपका ध्यान रहना चाहिए the, so ये हो गया आपका middle zone. onto the screen everyone, एकदम ध्यान से, मस्ती नहीं. ये मिडिल जोन हो गया, ये अपर जोन हो गया. देखो अप्रोक्सीमेटली मिडिल जोन का डबल. सब लोग ध्यान से. द फोकस एंड कंसंट्रेशन, मेरे पास जगह नहीं है इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसा दिखा. फोकस जब लिखोगे FOC, एफ जैसा भी लिखना वैसा लिखो. अभी फिलहाल एफ पे ध्यान नहीं दे. फोकस एंड, तो जब भी एंड लिखोगे AND, तो आपको मालूम है डी का स्टेम बड़ा करना है, मिडिल जोन से डबल होना चाहिए. मैं फोकस एंड कंसंट्रेशन, सब लोग स्क्रीन पे. तो जब वर्ड कंसंट्रेशन लिखो, कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट, टी लंबा लंबा, कंसंट्रेशन, टी का क्रॉस बार ऊपर और लंबा. ठीक है, माय फोकस या द फोकस जो भी है, द फोकस एंड कंसंट्रेशन. सो TRA, तो टी बड़ा, टी का क्रॉस बार लंबा, कंसंट्रेशन ऐसा. माय फोकस एंड कंसंट्रेशन इन माय स्टडीज. अभी लोअर जोन पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपर जोन पे ही ध्यान देंगे. तो स्टडीज, तो एस का टी बड़ा लंबा क्रॉस बार, स्टडीज, डी का स्टेम बड़ा, इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो जब भी लिखें डे, बड़ा स्टेम दिख रहा है, मिडिल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल अपर जोन, डे बाय डे. तो ये मिडिल जोन का अप्रोक्सीमेटली डबल अपर जोन, डे बाय डे. तो ऐसा ध्यान से सब लोग लिखेंगे, डे बाय डे. सब लोग को ध्यान देना है. फिर से वंस अगेन आई एम शोइंग यू, फिर से देखना है. एवरीवन हैज टू सी इट वंस अगेन. फिर से देखो सब लोग, ये मस्ती नहीं चल रही है यहाँ पे. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ऐसा प्रैक्टिस करना है और रोज सबमिट करना है आपको. The team, Real Academy team will be taking care of this thing. How we are writing, बहुत important है. They have spent a lot of money for this. बहुत सारा पैसा उन्होंने खर्चा किया, आप लोग को एकदम ध्यान से करना है. फिर से बता रहा हूँ, पूरा 21 दिन आपका ध्यान कौन सी दो चीज पे, अपर जोन पे और टी के ऊपर, इसी के ऊपर ही ध्यान देना. लोअर जोन ID सब बदलने कोई नहीं देखेगा, एक चीज एक ही, माय फोकस एंड कंसंट्रेशन, माय फोकस एंड कंसंट्रेशन. तो माय बराबर लिखा, फोकस इधर पे जगह नहीं, इसके लिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ. फोकस एंड, तो जब एंड लिखोगे ध्यान से, मिडिल जोन का डबल, तो मिडिल जोन का डबल, एंड कंसंट्रेशन एकदम ध्यान से, कॉन्सेंट्रे, टी बड़ा लंबा क्रॉस बार लंबा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. सबने लिख रहा हूं मैं, अपर जोन पे ध्यान देना, डे बाय डे. दिख रहा है कैसा, सब लोगों को दिख रहा है. मिडिल जोन का डबल अपर जोन, मिडिल जोन का डबल अपर जोन, मिडिल जोन का डबल अपर जोन. टी का देखो, मिडिल जोन का डबल अपर जोन, टी का क्रॉस बार ऊपर लंबा, स्टेम के ऊपर. This is the way, my friends, you are supposed to practice it. पैराग्राफ में लिखना है. फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, we are supposed to write in the form of a paragraph. जो भी पैराग्राफ अभी आप लोग को मैंने दिया है, ये पैराग्राफ आपको लिखना है. कितने बार लिखना है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. ब्लैंक पेज पे लिखना है, ब्लैंक पेज पे लिखना है. कितने बार लिखना है, तकरीबन 30 मिनट्स लिखना है. एवरी डे 30 मिनट. तो 30 मिनट में कभी 3 बार होगा, कभी 4 बार होगा, कभी 5 बार होगा, कभी 3 बार, कभी 4 बार, 5 बार. 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे फॉर द नेक्स्ट 21 days यू आर गोइंग टू राइट दिस वे. यस, डन. समझ में आया. किस पे ध्यान देंगे, कौन सी दो चीज पे ध्यान देंगे, टाइप इन द चैट बॉक्स. कौन सी दो चीज पे ध्यान देंगे, which are the two things which are going to focus, which are the two things which are going to focus, upper zone and T. अपर जोन और T का क्रॉस बार, ये दो चीज पे ध्यान देना. बाकी 21 डेज के बाद मैंने बता दिया था, बता रहा हूँ. देखो इधर पे ही बता देता हूँ आपको, ये ना अभी थोड़ी देर पहले बताया था. तो पहला 21 डेज, फर्स्ट 21 डेज ये करेंगे. फर्स्ट 21 डेज वी विल बी डूइंग ये दो, अब भी बताया था मैंने. यस, अपर जोन एंड टी.
फिर नेक्स्ट 21 डेज आप डी पे ध्यान देना एंड GJYZ पे ध्यान देना। सेम पैराग्राफ लिखना, सेम पैराग्राफ, तब तक आपका ना अपर जोन एंड टी बैलेंस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 21 डेज GJYZ एंड डी पे ध्यान दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट 21 डेज यू विल बी वर्किंग ऑन आई एंड कैपिटल आई एंड स्मॉल आई, इतना सा काम कर लेना। फिर सिग्नेचर इसी के टाइम पे मैं आपको बताऊं कैसा करने का। एवरीवन अंडरस्टूड? ब्लैंक पेजेस कोई भी नोटबुक पे निकलेगा, ओनली ऑन ब्लैंक पेजेस। जो भी ब्लैंक पेजेस है, पेजेस का नाम है A4 साइज, A4 साइज ब्लैंक पेज। प्रिंट आउट पेज होता है ना, कंप्यूटर प्रिंट आउट पेजेस, नहीं तो उसका A4 साइज का एक किताब ले लो, A4 साइज का ब्लैंक पेजेस का एक किताब ले लो। On blank pages you are supposed to practice this on A4 size pages. Is it clear everyone? And submit karo, they will explain you कब submit। 30 minutes, actually 45 minutes करना चाहिए, 30 minutes bare minimum, कि बाकी का पढ़ाई रहेगा, सब चीज होगा। ध्यान से, एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए, एक भी दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एक एज अ होमवर्क बोलते ना, एक बोलते ना, जैसे कि हम प्रेयर रोज करते हैं, खाना रोज खाते हैं, वैसा आपको पूरा का पूरा इस चीज को अच्छी तरह से करना है। दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज द एंटायर पैराग्राफ व्हिच आर सपोज्ड टू रिपीट। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग सिग्नेचर का भी, नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे, परसों हम सिग्नेचर का भी हल्के से डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट। ओके, डन। ओवर टू द होस्ट सर टू कंक्लूड द सेशन। झाली का व्यवस्था काही? Thank you, sir. Thanks for such a wonderful session. I hope all the students must have noted down all the things which sir have told to note, as well as the paragraph you have to write, which you have to practice, and the 21-day schedule, जिसमें आपको अलग-अलग तरीके से जो चीजें बताई गई है वो करनी है। So it was really a wonderful session, Rajesh sir. सबके लिए ये बहुत नया था। It was a new thing for everyone, for all of us, and it was very much interesting as well. जिस तरीके से आपने इसे समझा और जो ये कंसेप्ट है, I am sure कि सब बच्चों के लिए ये नया कंसेप्ट था और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। और I hello. Yeah. So I hope कि all the students will follow the schedule, and on behalf of all students as well as Real Academy, we thank you, sir, for your valuable time and the valuable words of wisdom. And students, I hope you all will follow this, since we will be going, all the branches will be going to take the feedback of whatever sir has given to you all, the work which sir has given. We will be taking the feedback on a regular basis. So see to it that you do it on a regular basis for next 21 days. It is for your good. You are only going to get the progress in it. So we will be meeting tomorrow the same time, 11 a.m. and we will be moving ahead with the workshop with other topics as well. Till then, thanks everyone. Tomorrow also all are requested to be on time as well as attend the session with your pen and paper to note down the things as well as to do the activities. So thank you, Rajesh sir, once again. Let's end this meeting for today. We'll meet tomorrow, everyone, 11 a.m. on the same ID. Thank you so much, friends. Thank you so much, sir, for the conclusion. Thank you, all the students. Start practicing from today and be active students and participative students. Thank you, everyone. Let's meet tomorrow for memory techniques and day after tomorrow for how to come out of these turbulent times, and as well as signature part will be covered. Thank you.